on your screen, right? So anytime, any point of time, if you have any questions, please feel free to write the questions. And we are going to cover vast variety of topics, है ना. And ये topics सारे design भी इसी तरीके से किए गए हैं ताकि we can add more value to your life, to your business. And we will start to understand the market a little bit, because that is very very critical in my opinion. You should understand what market you guys are working on, what should be your target area, how the market is going on right now in India, and how you guys can actually take benefit out of it, right? We already seen recently the India budget, though in my opinion it was not very specific to real estate. But what major changes, what we have witnessed is 12 lakh rupees. There's no income tax, and I'm sure how many of you are excited about it. How many of you are actually making up to 12 lakh rupees? So एक बार chat में फटाफट से type करके बताओ. Do you think it's a good budget? Very quickly, guys. And you are going to get benefit, because I'm sure the lot of people who are working on salaries, it's a kind of dream decision by the government, dream regime, tax regime. Technically अगर आप देखो तो 12 लाख तक no tax. That is, we are a tax free nation, because 90% of the salaried employee in this country is getting into, this, but I would say, under this bracket. So there are 10% of the people, 10% of the manforce, or 10% of the work power or manpower is actually about 12 lakh rupees. And in India, just to give you statistics, about 7.1% of the people are paying taxes, out of which 6.5% of the people are under this category. So this is a very, I would say, landmark step, a very positive step, because this is going to create a lot of consumption in the market. Everyone is understanding that people are going to, spend more, because they really wanted not to compromise on their lifestyle going forward. Until 12 lakh rupees, if they are selling, like, let's say 10,000, 20,000, which sums out to be, your 75 to 90,000 rupees, that will also further going to be maybe travel, leisure, in these cases. Second, from the real estate perspective, there's going to be two benefit. One is a rental, so they have given a relaxation for the tenants as well as the landlords, that there's no TDS till 6 lakh rupees. They have increased the price range from earlier it was 1.5, and now this goes to 6 lakh rupees. So this is a good relaxation. Second good relaxation is that you can take a benefit of two properties. So that means if you have two properties, then you really no need to pay any taxes on the rent if you are generating out of these two properties. Earlier it was one property and one self-occupied property. So I think this is a great step where the more and more agents, the more and more clients and buyers are going to buy properties, especially in secondary homes. They will invest in plots. They will invest in cash flow generating properties. So being a realtors, we should understand this. Second approach, if I just need to share with you, if a husband and wife are working, their household income will become 24 lakh rupees tax free. Two individuals can take a benefit up to 24 lakh rupees. So this is a great opportunity, and you can understand 24 lakh rupees is a good amount, and they can easily purchase a property up to 1 crore rupees. Both of them are going to get a benefit up to 2 lakh rupees in their tax returns, right? Saving their taxes. So I think these are 4 5 reasons why you should be aware about these tax changes, and you should also talk about it in your discussions when it comes to the clients. So now jumping on this, so guys, today we are going to talk about what is the market looks like, and how you guys can see as an opportunity in this particular markets. What are the things you need to consider? So guys, just to give a broader overview, so real estate is defined in three major sectors in India. One is the residential sector, where 95% of our agents, all of you are working, right? So this includes the gated communities, green homes, affordable housings, luxury homes, right? And we are seeing the demand in all these sectors, right? So there's a 20% growth in smart home integration. So majority of the developers you guys are working, the sales gallery you are visiting, they are talking about it's whole home automations. This is all integrated. This is a zero waste, we call it greenhouses, right? So sustainability is one thing, I think the Gen Z, or I would say the millennials, are very focused about, because if we are not able to preserve this nature,
then this is going to be spoiled and there's no future for our new generation. So they are very conscious about when it comes to buying certain goods, certain technology or certain products. So you need to understand that what is happening in the market, and especially there's a huge demand in the range of 2 and 3 bhk. So in Bangalore, just to share, and I'm sure in the chat you guys can also mention, there's a huge demand for 3 bedroom, especially the square footage is in the range of anywhere 1300 to 1900 square feet. The reason is very simple, because Indian household size is about 4. So there are husband, wife, and there are 2 kids, right? And they need an extra room for guests, for friends, for their parents to visit, right? Or it's visibly a utility room. Like some people use it as a home office after COVID. Some people use it as a kids room. Some people use it as a library, a lounge. So the preference is 2.5, 3 bedroom kind of a units. And not only there, I think in Pune, in Delhi NCR. So one size which is very very in demand is 2.5 or 3 bedroom. And yes, the person who wants to own their first house, so they enter with a 2 bedroom. Those who are living as a a bachelor life, they wanted to enter at a 2 bedroom. Those who recently got married, migrated to a city, they start from a 2 bedroom, right? So this is the most, I would say 75%, 80% of the demand comes from this particular sector. You guys can put your comments, as I'm repeating, because it has to be a very interactive session. In case you are not agreeing on this, I'm sure that some of you feel that there are more demand in 4 bedroom independent houses. Yes, that will be still there. The second is, I said, the sustainable features. Guys, talk about any developer, everyone is talking about sustainability, because as I said, the human behavior, right, the consumer behavior is getting changed. The millennials and Gen Z, right, the people who are aged from 20 to 40, they are very very focused about sustainability, no matter whether they are buying a car or a mobile phone, or or their goods also, like for example daily wear. It can be your clothes, it can be your consumable. So they are very very concerned about it. So people are started thinking. So अगर आप 10 साल पहले की बात करते हो, तो शायद people are not very aware about it, but because of internet, because of the movements what we are seeing in social media, so people are very very concerned about social this sustainable feature, and the home automation feature. So being a broker, what we need to understand, that whenever we go to any project, we need to ask these questions, because you are the person who's going to talk about further to your clients. So from the developer sales team, you should understand what are the things, like there's a water harvesting, there's a sewage treatment plant, there is a garbage disposable plant. So these are some of the major, or I would say key mandatory things which is required to develop a community from the government side also. Now second is commercial sector. Guys, everyone is aware about it. So co-working space is leading the game. So no matter which market you guys are working on, and we call it flexible spaces, and majority of the giants also. So yesterday night only I was looking at the news, and HSBC has decided to cut down their offices by 45% and moving to a more flexible spaces, co-working spaces worldwide. So this is a big move. Before that, there are companies like Microsoft has done that. There are some big giants like Alphabet has done that. So the reason why they are doing General Electrics, you must be heard of this name. So these are the companies who are moving the markets. So they are more getting into managed office spaces and co-working spaces. I'm sure some of you are already hearing this terms. The reason why I'm giving you idea, because people talk about it and you should have this knowledge, right? So now if you go to any organized player, their tech parks, the building which is not sold, so like Embassy, Divyashri, uh, DLF. So these are some of the big giants developers who are seeing huge demand, because all the buildings are owned by them. They have developed a ecosystem for any company to work. They have created a great workplaces so that the employee should be happy. It is more like a collaborative. You have a restaurant, you have a theme parties, a lot of engagement. So what is happening? These are demanding and attracting a lot of big companies to move into these organized business parks, right? चाहे वो हैदराबाद है, चाहे बैंगलोर है, गुड़गांव, बॉम्बे, बीकेसी, if you go नोएडा, गुड़गांव, obviously DLF, I'm sure सबने देखा हुआ है. नोएडा में there are some other developments come like Embassy, Oxygen Business Park, there's a Brookfield Park.
अगर आप इनको कंपेयर करोगे स्टैंड अलोन बिल्डिंग से, तो ये इनकी ऑक्यूपेंसी हमेशा ज़्यादा रहती है. सो जो लोग इस डोमेन में काम कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड अगेन, coming to the retail spaces, I think this is amazing. There's a huge shift we have seen. So more and more shift is already seen in traditional markets, right? So hybrid approach क्या होता है, जैसे ट्रेडिशनली हमारी हाई स्ट्रीट शॉपिंग थी, जो पुणे एक एक्सीलेंट एग्जांपल है. दूसरा एग्जांपल है बैंगलोर. सो पहले आप देखोगे एकदम एक कल्चर आया था 2001 से 2000 एंड आई वुड से 15 तक, कि पीपल लव गोइंग टू द मॉल्स, राइट? बट आज के टाइम में इफ यू सी, मॉल्स अभी भी चल रहे हैं, बट जो मोर ट्रैफिक है वो जा रहा है हाई स्ट्रीट पे, राइट? एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन एवरी डेवलपर, एवरी सेकंड डेवलपर आर क्रिएटिंग दीज हाई स्ट्रीट शॉपिंग. सो चाहे वो आपका बैंगलोर में चर्च स्ट्रीट है, राइट, ब्रिगेड रोड है. So all these areas you see more crowd than the shopping mall, right? So shopping mall definitely people feel that there's a hassle that going there, park karo, फिर उसके बाद चल के जाओ, and then you don't know where to go, right? On the other hand, the high street and retail shops, what we are seeing, there's a more ease. People will go, they'll park on the street, roadside on the street, or maybe parking, and just go to their place, and they can have fun also. Some people who have a feel of high end shopping, so it is kind of a concierge that you will get dropped at the outside of the shop itself. Like for example, most of the jeweler shop you will see, they are on the high streets, because they know their buyers are of that caliber, they need ease of life, right? So the guard will come, the valet service will be there. तो जितने भी आप देखोगे जूलर्स मॉल के अंदर कम होते हैं एंड हाई स्ट्रीट पे ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि एक प्राइवेसी, एक डिस्क्रिशन चाहिए होता है शॉपिंग के लिए. एंड दीज आर अगेन कंज्यूमर बिहेवियर्स, गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दोस. एंड एज आई सेड, ग्रेड ए ऑफिस स्पेस is in high demand, right? एंड द थर्ड ग्रोइंग सेक्टर, एंड लास्ट 7 years के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंडिया में ग्रोथ आई है, वो आई है इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से. टू मेजर रिफॉर्म्स चेंज हुए हैं. पहले डिमोनराइजेशन हुआ, दूसरा हुआ था आपका स्टैंडर्डाइज जीएसटी. सो पहले क्या था, हर स्टेट में डिफरेंट जीएसटी चलता था, राइट? अपना सॉरी वेट चलता था, उसको दे विल कोट स्टेट टैक्सेस, एक्साइज टैक्स, राइट? अलग अलग नाम से था. बट नाउ व्हाट गवर्नमेंट हैज डन बैक इन 2015 एंड 16, दे हैव स्टैंडर्डाइज इट, राइट, विद द कॉन्सेप्ट कॉल्ड जीएसटी. उन्होंने प्रोडक्ट बेसिस पे, सर्विसेज बेसिस पे एक स्टैंडर्ड टैक्स लगा दिया अक्रॉस द कंट्री. And then they have created a system that you guys can take a input if you have a multiple units. And second thing what government has done is invested highly in infrastructure, and this is one of the reason why any city is growing, चाहे आपकी गुड़गांव है, चाहे बैंगलोर है. तो सबसे बड़ा रीजन जो है ग्रोथ का रियल एस्टेट सेक्टर में, वो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव इन इंफ्रास्ट्रक्चर. सो अभी भी अगर आप देखोगे बैंगलोर में, देयर आर टू रीजन्स विच इज इन वेरी मच डिमांड, राइट? सो आई वुड से साउथ एंड ईस्ट इज काइंड ऑफ इक्वल, बट सबसे बड़ी डिमांड आ रही है नॉर्थ रीजन में. उसका सबसे बड़ा सिंपल क्या है, एयरपोर्ट इज वेरी नियर बाय. सेकेंड, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कनेक्टिंग द एयरपोर्ट by a metro line, right? And the city is already very expensive. So why people are moving toward this area? Because connectivity is there, connectivity to the city is there, connectivity to the world is there, and that's one of the reason why north is growing, and you guys are already witnessing it. Second example is Noida, right? I'm just giving you again a different perspective. So अगर आप गुड़गांव देखोगे, 5 साल पहले का, राइट, जब तक ये गोल्फ कोर्स रोड नहीं बना था, 6-7 साल पहले ले लो आप, 2016-17, जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन में था, द प्राइसेस वर लाइक ग्रोइंग, दे वर ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 3-4-5%. देन व्हाट हैपेंड, द गवर्नमेंट हैज सीन दिस एज अ चैलेंज, बिकॉज वाटर लॉगिंग बहुत हो रहा था. आपने सबने न्यूज में देखा होगा, गुड़गांव डूब गया. तो द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू शिफ्ट and took a major step, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे प्राइवेट डेवलपर्स है, they come together and they started building a better infrastructure. And in last 5 years, जो लोग गुड़गांव में हैं या फिर जो लोग दिल्ली में हैं, वो आप खुद देखोगे कि क्या एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. चाहे वो अंडर पासिस की बात करें, चाहे NH8 को डीकंजेशन की बात करें, चाहे जो सेक्टर रोड्स हैं उनको बेटर, अभी भी बहुत स्कोप है. मैं गुड़गांव का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि गुड़गांव में क्या हुआ था, पहले डेवलपमेंट आया और उसके बाद रोड्स एंड इंफ्रा आया. सिमिलरली बैंगलोर में हुआ है ऐसे ही. पिछले 20 साल के अंदर अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी आर्टरी रोड बना रहे हैं, आपके ORR बना रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं. उसका रीज़न यही है ताकि डीकंजेस्ट करें सिटी को एंड ग्रो करें सिटी को, राइट? एंड गुड़गांव के एज एन एग्जांपल गाइज, आप देख रहे हो कि प्राइस हैज़ गॉन ऑलमोस्ट 300% इन लास्ट 5 years, बिकॉज जैसे जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन्स होते जा रहे हैं, जैसे जैसे कनेक्टिविटी बेटर होती जा रही है, जैसे जैसे
social infrastructure better hota ja raha hai, the prices has scaled up, and this is the same thing which happened and impacted in industrial sector. So आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ आई है इंडिया के अंदर इन लास्ट 5 years, अगर आप एफडीआई को भी देखोगे, दैट इज इनटू industrial and logistics sector, right? And this is again very simple. There are 3 4 things. Logistic parks बनने लग गए हैं, जो सप्लाई चेन है, जो अमेजोन है, जो बड़ी कंपनीज है, जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज है, आपको सिंगल डे डिलीवरी दे रहे हैं. तो आपने कभी सोचा होगा कि कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज दे आर हैविली इन्वेस्टेड इन लॉजिस्टिक्स, राइट? सप्लाई चेन उन्होंने ब्रेक कर लिया है. उन्होंने कोशिश क्या करा है कि एक बड़ा वेयर हाउस बनाया है, देन उसके बाद में रीजनल वेयर हाउस बनाए हैं, देन उसके बाद में सिटी वाइज माइक्रो वेयर हाउस बनाए हैं, देन वेन लोकेलिटी वाइज वेयर हाउस बनाए हैं. तो ब्लिंकिट, जैप्टो, आपके विद इन 3 किलोमीटर्स के अंदर उनका एक छोटा सा स्मॉल हब है, जिसे हब बोलते हैं वो, एंड वहां से वो आपको डिलीवर करते हैं. तो विद इन 10 मिनट्स 20 मिनट्स आपके पास चीजें आ जाती हैं. लेंस कार्ट ने अभी एडवर्टीजमेंट डाला हुआ है कि आज आप ऑर्डर करो, कल आप सुबह सेम डे डिलीवरी या नेक्स्ट डे डिलीवरी ले लो. वो क्या करा उन्होंने, जितने उनके जो आउटलेट्स थे लेंस कार्ड के, वहीं पे एक डिलीवरी का सिस्टम बना दिया, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच इज एक्चुअली लर्निंग. एंड फ्रॉम द रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, तो बेसिकली ईएक्सपी को अगर आप एक कंपेयर करते हो, तो ईएक्सपी हैज ऑल्सो क्रिएटेड द सेम थिंग. कहीं से भी कोई रिक्वायरमेंट आ रही है, तुरंत हम आपको उसके लोकल मार्केट में भेज दे रहे हैं. तो जस्ट सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी, एंड दिस इज हाउ इज गोइंग टू ग्रो. लास्ट माइल डिलीवरी, एज आई सेड, मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, आप सब लोग सुन रहे हो, देर आर डेडिकेटेड हब्स हैज बीन क्रिएटेड. चाहे वो बैंगलोर है, चाहे गुड़गांव है, कहीं ना कहीं आप सब लोगों को डिमांड आ रही है. क्लाइंट्स वांटेड टू परचेज अ लैंड to create their manufacturing unit, because there are so many factors. One is government has given ease. Second, there are a lot of things. And now, why this industrial and commercial growth is impacting residential? Because lot of migration happening. People are making more money. That's why they are willing to invest in other markets. So I hope you are able to understand. सो गाइज, सेकंड थिंग, पहले क्या होता था, मेन अपॉर्चुनिटी हमारी टीयर 1 में थी, बट आज के टाइम में टीयर 2 में भी एक ह्यूज जंप देखा गया है, राइट? सो जस्ट टू गिव यू स्टार्ट फ्रॉम टीयर 2, सो देयर इज अ 25 to 30%, राइट, प्राइस वाइज. अगर मैं कंपेयर करता हूँ टीयर 1 से, और कई कई सिटीज में तो 50% का गैप है. सो इट मेक्स टीयर 2 सिटीज मोर अफोर्डेबल. कम्यूट टाइम की मैं बात करता हूँ, बिकॉज हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रोज, रैपिड मेट्रो सिस्टम, railway system, they have improved it. So people are considering, जिनके पास budget नहीं है, to move on that cities. So for example, Pune, Chandigarh, Kochi. So these are one of the reason why people are shifting to these. From Bangalore, I think Belgaum is there. I'm sure Chikbellapur, right? I'm sure there are some areas which was not there. तुमकुर फॉर एग्जाम्पल, साउथ बैंगलोर की मैं बात करता हूँ, मुंबई की बात करता हूँ, नवी मुंबई हो गया, मीरा रोड हो गया, थाने हो गया, पुणे हो गया, पनवेल हो गया. ये सारे प्रोजेक्ट्स, ये सारे अच्छे डेवलपर्स इस मार्केट में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लैंड सस्ती है. एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट वो बना पाते हैं जो कि मार्केट में चाहिए लोगों को, 70 लाख to 1 करोड़ वाला या 1.5 करोड़ वाला. And they will be able to deliver that because of the pricing reason, and that's one of the reason the majority of the demand and majority of the contribution is coming from these markets, right? And especially the first time home buyers, right? 60% of the buy and purchases are in these market, and that is one of the reason why North Bangalore, South Bangalore, the further part of East Bangalore is getting more tractions, and developers are launching more projects. Similarly in Noida, in Gurgaon, because Delhi becomes so expensive. Similarly in Mumbai, if you see MMR region, so now they have recently announced Mumbai 3.0. So I can give you a prediction that in next 2.5 years, you will see a lot of movement in Mumbai 3.0. There the apartment prices start from anywhere. Affordable size is 15 25 lakh. A good mid-income kind of housing will start from 50 to 70 lakh rupees for a 2 to 3 bedroom, and for a plotted development also you will get 50 to 70 lakh. Similarly in Bangalore, North Bangalore, you guys are seeing the plots are ranging in from 75 80 lakh rupees to 1.5 crore. So जिनको अपना dream home बनाना है, because it's always a feeling of Indians that they wanted to own the land also, not only just a roof. So that is one of the reason majority of the people invest, and land appreciates more. That is also one of the reason why people chose land over apartment, those who are investors, right? So you can see 60% of the market is actually driven by the home buyers who are buying their property for the first time. And where they can buy on the tier 2 or outskirts of the city. So those who are struggling in the market, those who wanted to sell 5 crore, 10 crore, definitely there's a huge market. But you need to understand that ज़्यादा chunk कहाँ पे है, right? ज़्यादा business कहाँ पे हो रहा है. So
no matter whether you are in Pune, no matter whether you are in Bangalore, Delhi or Gurgaon, you need to identify those market and start working, because ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी जहाँ पे होगी वहीं पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, राइट? सो इट्स लाइक अ पिरामिड. 70-80% ऑफ द मार्केट कम्स फ्रॉम द अर्ली एंट्री सेगमेंट, राइट? उसके बाद में आता है आपका जो मिडिल इनकम हो गया और हायर मिडिल इनकम क्लास हो गया, राइट? एंड देन उसके बाद में आता है आपका लग्जरी, राइट? उसके बाद में आता है आपका अल्ट्रा लग्जरी. तो यू नीड टू डिफाइन, एंड वो चैनल जितना ऊपर जाते रहोगे उतना ही ज़्यादा नीश होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा आई वुड से रिवॉर्डिंग होता जाएगा. बट आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड होना पड़ता है, आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, तभी आप उस मार्केट में एंटर कर पाएंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट द टीयर वन में क्या हुआ है, ऐसा सबसे ज़्यादा चाहे वो कोई भी मार्केट है, चाहे वो बैंगलोर है, हैदराबाद है, दिल्ली है, गुड़गांव है, तो ये मार्केट्स क्या थे जो अभी हम टीयर टूज में देख रहे हैं या फिर जो आउटस्कर्ट्स में देख रहे हैं, ये यहाँ पे 25 साल पहले हुआ था या 30 साल पहले हुआ था. दीज आर द मेजर मेट्रो सिटीज ऑफ द कंट्री. सो वहाँ पे ऑलरेडी मार्केट इतना ज्यादा, जिन लोगों ने 20 साल पहले इन्वेस्ट किया था उनकी कैपिटल अप्रिशिएट हो रही थी, बट वहाँ पे क्योंकि अब लैंड ही नहीं बची है तो वो ओवर प्रीमियम होते जा रहे हैं. और वहाँ पे जो अप्रिशिएशन है दैट इज इन द रेंज ऑफ 15-20% ऑन एन एवरेज इन पैन इंडिया. सो दिस इज अ डेटा ऑफ टॉप 8 cities, जिसमें आपकी सारी मेजर मेट्रो सिटीज कवर होती है इंक्लूडिंग कोलकाता. सो दीज आर अ की ट्रेंड्स व्हाट वी हैव सीन इन दिल्ली, व्हाट वी हैव सीन इन बैंगलोर, what we have seen in Mumbai, what we have seen in Gurgaon, for example, because Delhi I am considering NCR as a one part, and also the major markets like Chennai, Kolkata, and Hyderabad. So these are the tier 1 cities. एंड यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि जो स्पेसेस है, जो ऑफिस है, जो कंपनीज है, वो अपने हेडक्वार्टर्स उसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर बनाएंगे, द बेस्ट सिटी सेंटर के अंदर बनाते हैं. और जहाँ पे आपका ऑफिस होता है उसके आगे मतलब 90% ऑफ द पीपल प्रीफर टू लिव इन सराउंडिंग मैक्सिमम बाय 5-7 किलोमीटर्स. सो जहाँ पे ज़्यादा डिमांड आएगी, जहाँ पे ज़्यादा आपकी ऑक्यूपेंसी आएगी, तो उसके पास ऑब्वियसली प्राइस तो बढ़ ही जाते हैं. एंड सेकंड रीजन, एज आई सेड, द मार्केट इज डूइंग गुड. देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लग्जरी, क्योंकि जो लोगों ने पहले वहाँ पे घर खरीदा था एंट्री लेवल पे, जो फर्स्ट टाइम होम बायर थे आज से 20 साल पहले, अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके पास पैसा और आ गया है, उनके बिजनेस से फ्लरिश कर गए, उनकी सेविंग्स हो गई है, तो वो अपग्रेड कर रहे हैं, राइट? दे आर अपग्रेडिंग टू द बेटर प्लेस. और क्योंकि जो पहले घर में रह रहे थे शायद वहाँ पे एमिनिटीज नहीं होती थी, एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज होती थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती थी, और आज के टाइम में प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो जो एमिनिटीज है, इसीलिए डेवलपर बात करता है 50+ एमिनिटीज, 40+ एमिनिटीज, बिकॉज उनको पता है कंज्यूमर को क्या चाहिए. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई पीपल आर माइग्रेटिंग. एंड आफ्टर कोविड एवरीवन रियलाइज, जैसे मैंने बताया 3 बेडरूम की डिमांड सबसे ज्यादा क्यों है, या 4 बेडरूम की, क्योंकि एवरीवन वांट्स अ बिगर स्पेस. सबको अपने घर में होम ऑफिस चाहिए, सबको अपने घर में एक सिटिंग एरिया चाहिए फैमिली के साथ बैठने के लिए, क्योंकि आप पूरा टाइम बेडरूम में नहीं होते हो. आप अगर देखोगे किसी के भी और अपनी लाइफ को भी एक्सप्लोर करोगे, तो आई थिंक 60-70% of the time you spend in different part of your house, not in your bedroom, right? So that's why people have started looking for these kind of space, and I think these are some of the major reason. And I think one another reason why people or investors are getting into these tier 1 cities is the rental, right? So we have seen a lot of news, lot of memes, lot of sharing about that rental yields in the prime locations has gone high. चाहे वो आपका गुड़गांव है, चाहे वो आपका बैंगलोर है, बॉम्बे है, rentals are crazy, right? Skyrocketing. 65,000 rupees for a 2 bedroom, which used to be 25,000, right? So this is one of the reason why the government has understand this, and that from 20,000 rupees kind of average rental, they accepted that it could be a 50 to 60,000 rupees as an average rent, and that's why they have increased the TDS applicability from 1.5 lakh to 6 lakh rupees. So you guys need to understand all these things, why things are happening, and then you can actually go to your clients and tell them that, boss, this is the benefit of investing. I hope this slides also makes sense to you. So guys, now just to give you an idea why there are some challenges in sales, right? So I have tried to create something where you need to understand that कि land में क्यों नहीं हम deal कर पाते, क्या क्या challenges आते हैं, how we can actually improve that. तो वासु एक बार मेरे पास reach out किया था, कल मेरे पास कुमार ने मेरे को reach out किया था.
तो हमें थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि भाई इंडिया में जो मेजर ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, वो हमारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं या टियर 1, टियर 2 सिटीज़ में क्यों होती हैं? क्यों आप बेलगाँव में क्यों नहीं कर पाते? सबसे बड़ा आई थिंक हर्डल है लोगों का जो माइंडसेट है, लोगों को टैक्स नहीं पे करना है, लोगों को जीएसटी के नाम से डर लगता है और शायद हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है। हम हर लोग ये सोचते हैं कि टैक्स कैसे बचाएँ, रादर दैन ये सोचने की टैक्स को कैसे दें, राइट? जो टैक्स बनता है उसको हमें देना चाहिए। शायद ये हमारा जो सराउंडिंग है, जो हमारी जो कहते हैं ना उठना-बैठना है, वही गलत है। Everyone is thinking कि what are the ways of saving taxes and that is one of the reason why corruption is there, why people are not showing all transactions in white and जैसे-जैसे आप जितना आप जो कहते हैं ना रूरल एरिया की तरफ जाओगे वहाँ पे उतने चैलेंजेस आएँगे और ईएक्सपी के साथ भी ये चैलेंज है। आई थिंक आई एम श्योर देयर आर सम एजेंट्स who left EXP broke that reason because they don't want to pay taxes. They are doing business but they are doing business in cash, right? They don't have books. अभी जो गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है वो इसीलिए लिया है क्योंकि वो लोग वही थे जो 3 लाख रुपए पे नील की इनकम फाइल कर रहे थे या 5 लाख रुपए पे इनकम फाइल कर रहे थे। अभी वही लोग आप देखोगे ऑल ऑफ अ सडन इंडिया में एंड आई कैन गिव यू दिस डेटा एंड आई थिंक आई एम श्योर the the finance ministry is also going to disclose this data that over the year there's a certain percentage like lakhs of people and crores of people have increased their tax return from 5 lakh to 12 lakh rupees because लोगों को free चाहिए इंडिया में and this is our mindset and that's one of the reason you will see there's a huge jump people start filing income tax now. So now coming to this there are some challenges. सबसे बड़ा क्या होता है लैंड टाइटल्स का हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो प्रॉपर्टी डिजिटाइज नहीं है इंडिया के अंदर तो देयर इज नो वे अगर 5 साल पहले की बात करोगे तो देयर इज नो वे यू कैन चेक ऑनलाइन कि ये प्रॉपर्टी क्लियर है या नहीं है अभी तो फिर भी ई खाता आ गए हैं राइट जो बैंगलोर में भी चल रहा है बी खाताज चल रहे हैं बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट निकाल दिया था 2019 में जहाँ पे कि पहले क्या होता था कि ओनर कोई होता था बट प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड किसी दोस्त के नाम पे ड्राइवर के नाम पे होती थी तो दिस इज जस्ट अगेन bypass taxations for the business. So now this is just to give you an idea what are one of the challenges. So I think सबसे बड़ा challenge था land titles. So that is one of the reason being a broker you are also not able to go and check it out कि कहाँ पे क्या है you need to go to the तहसीलदार you need to go to the local authority municipality and then try to find sometimes another challenge is some documents are in Urdu some documents are in Kannada some documents are in Hindi English so the person who cannot speak or understand those languages then again it's a challenge right so this is again a bill which has been proposed in the parliament in 2017 to standardize all the documentation either in Hindi or English but then again because of political scenario of this country this bill got rejected and never like nothing happened so just understand that I am a multinational company I wanted to operate and I wanted to set up my 5 plants in 5 different states right which includes 5 different geographies northeast west south and central then what is the right way of approach तो सबसे बड़ा चैलेंज यही आ जाता है ड्यू डिलिजेंस इज नॉट क्लियर द डॉक्यूमेंटेशन विच इज एप्लीकेबल इन दिल्ली इज नॉट द सेम विच इज एप्लीकेबल इन बैंगलोर और आउटस्कर्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट सो लेट्स से टॉक अबाउट द स्टेट स्पेसिफिक राइट सिटी स्पेसिफिक में तो फिर भी सब कुछ इंग्लिश में होता है या फिर आपकी लोकल लैंग्वेज में होता है बट अगर आप जितना आप थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाएंगे 100 किलोमीटर्स फ्रॉम योर सिटीज यू विल स्टार्ट फाइंडिंग दीज चैलेंजेस right second like as I said there's a limited infrastructure development right so वहाँ पे क्या है amenities बड़ी कम है तो लोग थोड़े से hesitant होते हैं जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अभी आपने सुना होगा नौगांव करके आया है गुड़गांव के पास में एंड सेम बैंगलोर के पास में चिकबेलापुर है राइट सो लोग वहाँ पे जाके ऐसा नहीं है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है लैंड बहुत सस्ती है जितने में आपको स्क्वायर फीट में यहाँ पे लैंड मिल सॉरी अपार्टमेंट मिल रहा है वहाँ पे सेम प्राइस में 1 करोड़ रुपए में आपको एकड़ का लैंड मिल जाता है कुछ कुछ एरियाज में या फिर हाफ आ एकड़ मिल जाएगा एटलीस्ट 1000 स्क्वायर यार्ड तो मिल ही जाएगा तो आई एम जस्ट टेलिंग यू बट वाई पीपल आर नॉट बाइंग क्योंकि वहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात है लैक ऑफ क्लैरिटी है थोड़ा माफिया राज भी चलता है राइट जितना आप स्कर्ट्स में जाओगे जो अथॉरिटीज होती है वो वहाँ पे होती नहीं है तो दैट्स वाई पीपल शाई अवे फ्रॉम दीज एरियाज but as a realtor what you guys can do I mean this is again an opportunity I'm talking about the solutions also but just to give you another challenge is the policies and financial institution बैंक वहाँ पे फंड नहीं करते हैं लैंड खरीदने के लिए बैंक लोन नहीं देता है एग्रीकल्चर लैंड के लिए बैंक लोन नहीं देता है तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द अगेन रीजन बट बाकी कंट्रीज में अगर आप जाओगे तो ये सारी चीजें अवेलेबल है वो रिफॉर्म्स बिल्कुल डिफरेंट है एंड देन अगेन द लोअर मार्केट वैल्यूज
कंपेयर टू अर्बन प्रॉपर्टीज। सो वहाँ पे लोग क्या सोचते हैं कि यार जो सर्कल रेट है उसी पे ट्रांजेक्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा कैश लें। ठीक है, अब अगर आप एक वर्किंग क्लास हो, आपके पास है ही नहीं कैश 50 लाख रुपीज़ का, तो आप जाते हो जब सेकेंडरी मार्केट में डील करने, एक प्लॉट लेने, जैसे नॉर्थ बैंगलोर में आज से 10 साल पहले, वासु करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सो वासु आर यू देयर? I'm there. हाँ, सो वासु अगर मैं आपसे ही पूछता हूँ, बिकॉज यू वर डीलिंग 6-7 साल पहले अगर आप नॉर्थ बैंगलोर में जाते थे तो कोई वहां पे देता था 50 लाख रुपए पूरा वाइट में और 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट, नहीं ना, है ना? सो वो सबसे बड़ा like guidance value करेक्ट। तो और सबसे circle बड़ा rate. रीजन क्या था ना, वहाँ पे देखो रिफॉर्म्स नहीं थे, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स नहीं थे, है ना? नो वन वांट्स टू पे टैक्सेस, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। एंड आज भी है ये, मतलब ये आयरनी है हमारे देश की कि वी आर 1.5 बिलियन, ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन ऑफ द पीपल। ठीक है, और उसके बाद भी देर आर ओनली 3%, लेस देन 3% पीपल पेज टैक्सेस। तो ऐसा थोड़ा ना कि पैसा नहीं है, पैसा बहुत है। एंड आई थिंक ये आप लोगों को एज अ ब्रोकर्स में फिर से बोल रहा हूँ, एंड द रीजन वाई वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस ट्रेनिंग, यू शुड अंडरस्टैंड कि सही क्या है, गलत क्या है। एंड आई एम श्योर यू मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर अबाउट इट। सो दैट इज अनदर रीजन वाई you should understand this and you should educate the seller as well as the buyer as well। दैट्स अ सही ये है, अगर आप नहीं करोगे तो 5-6 साल बाद हो सकता है गवर्नमेंट कुछ नया रूल लाए तो आपको चैलेंज आए। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन देयर इज अ ह्यूज शिफ्ट फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट मनी, राइट? एंड ट्रांजेक्शंस में, स्पेशली रियल एस्टेट ट्रांजेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, टीयर 1 टीयर 2 में हो गए हैं, बट टीयर 3 में थोड़ा चैलेंज है। और थर्ड इज अगेन दिस इज सीजनल इनकम, जो रूरल एरियाज में वही लोग खरीदते हैं। तो जहाँ पे आप लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीकानेर में हमारे एक एजेंट है, तो वहाँ पे भी चैलेंज यही है, क्योंकि मार्केट ऐसा है कि वहाँ पे कौन खरीदेगा, या तो वहाँ के जो बिजनेसमैन है, कम्युनिटी, वो खरीद लेंगे, या फिर जो बीकानेर से मूव करके दिल्ली गया है, बैंगलोर गया है, तो वो को सोचेगा कि यार मैं एक घर खरीद लेता हूँ सेकेंडरी मार्केट में। सो दिस इज लाइक अ सीजनल, अगर उसकी इनकम अच्छी हो रही है देन ओनली ही विल इन्वेस्ट बैक इन देयर होम टाउन, एंड दैट्स हाउ द सिटीज ग्रो। एंड स्पेशली टीयर 3 विलेजेस, तो वहाँ पे आप देखोगे मोस्टली फार्म हाउसेज, इस तरीके की ट्रांजेक्शन होती है, या फिर जिसको अपना कैश खपाना है आज के टाइम में वो जाके खरीदता है। बट दैट इज नॉट द राइट अप्रोच, वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज चैलेंजेस। अब सम ऑफ द सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा क्या है कि सबसे पहले अगर आपको ऐसे मार्केट में डील करना है तो वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी लीडर होते हैं, जो प्रधान होते हैं, जो वहाँ के ब्रोकर होते हैं, उनके साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दी आई वुड से द डॉक्यूमेंटेशन, द लीगल पार्ट ऑफ इट, राइट? सो दैट इज वन ऑफ दी, आपको लोकल लेवल पे जाना पड़ेगा, ग्राउंड रूट लेवल पे जाना पड़ेगा अगर आपको ऐसी ट्रांजेक्शन्स करनी है, right? Second, you need to understand and see when you are working with buyer and seller about the development potential and proximity from the urban centers. Like, so for example, I'm just taking an example of Chikbellapur again. So अगर हम चिकबेलापुर क्यों बंदा खरीदे, वो लैंड पार्सल क्यों उसको खरीदना पड़े, उसके लिए आपके पास थोड़ी ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी कि भाई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है गवर्नमेंट के, रोड वाइडनिंग है कि नहीं है, कोई आसपास एक्सप्रेसवे निकल रहा है क्या, वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल हब आ रहा है क्या, क्या मूवमेंट वहाँ पे हो सकती है आज से 10 साल बाद, जैसे सिटी ग्रो कर रही है, नॉर्थ जहाँ पे जो लास्ट डेवलपमेंट है उससे ये कितनी दूर है। सो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू sell that particular property or you will be able to find a buyer for that particular property। सिमिलरली आपने देखा हुआ गुड़गांव में नौगांव करके एक नया एरिया है, तो वो 80 किलोमीटर से गुड़गांव से, ठीक है, बट पीपल आर फोकसिंग ऑन दैट बिकॉज दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आसपास एक्सप्रेसवेज निकल रहे हैं, कनेक्टिविटी है। और अगर आप मैं देखूं आज न्यू गुड़गांव तक हो ही गया है, अब न्यू गुड़गांव के आगे क्या है ना? सो मानेसर तक हो गया है, तो एक नया सेक्शन आ रहा है नौगांव करके। सिमिलरली नोएडा में क्या है, जेवर आ रहा है, राइट? जेवर के भी अगर आप आसपास देखोगे तो आगरा तक डेवलपमेंट हो रहे हैं, बिकॉज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द एयरपोर्ट फ्रॉम आगरा टू जेवर इज ऑल्सो क्लोज। पहले क्या था, आगरा से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर दूर था, बट अगर आज आप जाके देखोगे आगरा से जो नया एयरपोर्ट है वो मात्र 120 किलोमीटर है, right? So these are some of the reasons you guys need to understand why one should invest, right? And then सबसे बड़ी बात क्या है, एक डॉक्यूमेंटेशन का पैकेज बना लो। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी सेकेंडरी मार्केट आता है तो आपके पास एक 15 पॉइंटर्स होने चाहिए कि कोई भी प्रॉपर्टी मैं जब बेचूंगा, जब मेरे पास ये 15 चीजों के आंसर होंगे और एटलीस्ट मैक्सिमम आंसर होंगे। इफ यू आर सेटिस्फाइड देन ओनली यू आर एबल टू सेल इट। You have to ask the seller in advance before even having a buyer that these things are in order or not, otherwise
your time is going to waste. And then, as I said, if you want to deal in these kind of markets, because I keep on hearing मेरे पास 100 एकड़ लैंड पार्सल है, मेरे पास 3 एकड़ लैंड पार्सल है, मेरे पास गोवा के अंदर है, मेरे पास लेट्स से देहरादून के अंदर है. तो guys, you need to understand all these things, then only it will happen. So guys, now just to give I you had a the, request. sorry, go ahead. I had a request, Shank. Can we just take a case study, like of one particular land, and then do the needful for each pointers that you have created, Correct. and understanding how and what? Because while you say, like we should understand the development around the property in the rural area and all, it's very difficult for a new person or a starter to understand where to go, what to do, and whom to approach. So if we have a देखो, case study in case, तो that's week 2 में ना we are doing a session about documentation, how to market the primary market, what are the documents required for the primary, what are the documents required for secondary, and what are the documents required for lands transaction. So we are doing a session already in this particular training session only, and that's why I'm saying every session is different. You need to attend, because these are very comprehensive sessions just for your knowledge and your insight. We want all exp agents to be understand this your game, right? Understand your markets, and then start working on that. So now talking about the affordable housing market strategies, Vasu, definitely we are doing it. So just coming back to the presentation Thanks. for today, right? So we are going to talk about the housing marketing strategy, and this is I'm talking about the properties which is in the range of 50 lakh to 1 crore rupees, right? सबसे बढ़िया तरीका ये है, and I'm talking about the opportunities now. You need to understand next 3 slides. This is more like you, हाउ यू कैन एक्चुअली ग्रो मोर बिजनेस. सबसे पहले आपको बायर का समझना पड़ेगा बिहेवियर क्या है, राइट? सो सबसे पहले जो भी फर्स्ट टाइम होम बायर होता है अफोर्डेबल हाउसिंग का, 50 लाख का, 75 लाख का, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का, वो होता है फर्स्ट टाइम होम बायर, राइट? एंड सेकंड आता है आपका इन्वेस्टर, जो कि ग्रोथ देखता है, ठीक है? तो इन्वेस्टर्स के लिए आपको क्या एक पिच होनी चाहिए, इन्वेस्टर्स के लिए आपको क्या पॉइंट्स पता होना चाहिए, आई थिंक वो आपको मैंने बताए हैं. इन्वेस्टर देखता है कि क्या अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 5 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद मैं कितना पैसा निकाल पाऊंगा, राइट? एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो इट इज अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड अ लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ वेटिंग, राइट? सो 3 से 5 साल का वेटिंग पीरियड होता है जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज अ नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है कि सर आप 25 लाख ले लो और 15 लाख रुपए ऊपर दिला देना 1 साल में. ऐसा नहीं होता. अभी मार्केट थोड़ा भागा है, इस वजह से थोड़ा सा आपने देखा होगा ऐसे थोड़े एक्सेप्शंस हुए हैं, बट उन एक्सेप्शंस को देख के आप सोचो कि हर मार्केट में ऐसा होगा, विच इज नॉट ट्रू. गुड़गांव एकदम फट गया, बबल था, जो भी आप बोलो, but I told you the reasons also why it happened, because the growth was slow for last 7 years, and then all of a sudden all over India the demand increases. लोगों के पास थोड़ी सेविंग्स आ गई, थोड़ी पेइंग कैपेसिटी आ गई, मार्केट में प्राइस में एज एन अपॉर्चुनिटी दिखी, बड़े डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे, डेवलपर जो हमारे कहते हैं लोन के जो इंटरेस्ट रेट थे वो कम हुए. तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ओवरऑल हमने एक मूव देखा, बट एक साइकिल होती है रियल एस्टेट की, वो आप लोगों को सबको समझनी पड़ेगी. तो नाउ कमिंग अबाउट हु कैन बी योर बायर, right? So for that you need to understand what is the cost effectiveness. Like for example, the product you are marketing, is it compatible in the market, या फिर एंट्री में है, या फिर वो सस्ता है बाकी प्रोडक्ट से, एवरेज प्रोडक्ट से, या फिर वो बहुत महंगा है, राइट? एंड देन अकॉर्डिंगली यू नीड टू क्रिएट अ स्ट्रेटेजी अराउंड इट. Second, you need to understand the connectivity, right? And third is family friendly amenities. So आजकल मैं सब बता रहा हूँ, लोग कम्युनिटीज में इसलिए जाते हैं क्योंकि सेफ्टी होती है, 24/7 सिक्योरिटी होती है, एमिनिटीज होती हैं, बच्चे फ्रीली नीचे जा सकते हैं, जो आसपास का जो नेबरहुड होता है. देखो सबसे ज़्यादा जो माइग्रेट होते हैं लोग, वो अपने बच्चों के लिए होते हैं, वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को एक बेटर लाइफ स्टाइल दे पाए, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई पीपल आर मूविंग टू दिस कम्युनिटी. तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे है, स्कूल्स कितनी दूर है, हॉस्पिटल कितनी दूर है, कोई भी डेवलपमेंट आ रहा है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना? और इससे आप देखोगे जब क्लाइंट से आप ये क्वेश्चंस पूछोगे ना, तो चांसेस ऑफ क्लोजिंग दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज मच मच हायर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उसका बच्चा कहाँ पे जा रहा है, आसपास में कौन सा स्कूल है जहाँ पे वो बच्चा एडमिशन करा सकते हैं, कल को अगर इमरजेंसी आ गई तो हॉस्पिटल कहाँ पे है नियर बाय. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई पीपल आर शिफ्टिंग, राइट? सो पहले नॉर्थ बैंगलोर में आई थिंक स्कूल्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो वहाँ पे लोग नहीं शिफ्ट हो रहे थे, बट जैसे जैसे वहाँ पे ये बन रहा है,
जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे जो है थोड़ा-सा लोगों को लगता है कि हाँ, अब वहाँ पे जाके हम रह सकते हैं, बिकॉज़ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ आल्सो देयर। सिमिलरली साउथ बैंगलोर, सिमिलरली इन आई वुड से पनवेल, मुंबई 3.0, जेवर फॉर एग्ज़ाम्पल, यमुना एक्सप्रेसवे पे अगर आप मेरे से बोलते 4 साल पहले जाके रह ले, मैं नहीं रहता। एज़ अ इंडिविजुअल आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज़ देयर वाज़ नो स्कूल, देयर वाज़ नो हॉस्पिटल। मेरे को अगर कुछ भी चाहिए होता तो मेरे को नोएडा या ग्रेटर नोएडा जाना पड़ता। बट नाउ थिंग्स हैड चेंज्ड। Similarly, New Gurgaon, Sohna ke andar, for example. So these are some of the reasons why you should understand these insights, right? Second, you need to understand the marketing tips for the what do you say, the government initiatives, right? So जैसे मैंने आपको बताया बजट के अंदर गवर्नमेंट क्या सोच रही है, राइट? प्रधानमंत्री आवासीय योजना इज वन ऑफ दैट, जो अगर आप 45 लाख से नीचे का कोई भी घर खरीदते हो, सो उस पे आपको 1% रजिस्ट्रेशन चार्ज करना होता है अगर वो पीमे में रजिस्टर्ड है प्रॉपर्टी, जो कि 90% होती हैं, राइट? सो 25 लाख 35 लाख की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उस पे फ्लैट आपका 1% रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। तो ये चीज़ बीइंग अ ब्रोकर यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग। सेकंड, व्हाट आर द सब्सिडीज। कई कई बार क्या होता है, बैंक्स सब्सिडीज देते हैं, जो नेशनलाइज बैंक है, कि अगर वुमेन पहली बार अपना घर खरीद रही है तो कुछ रिबेट्स उनको मिल जाती हैं। वुमेन के केस में 0.25%, 0.5% इंटरेस्ट रेट बेटर होता है। अगर आपकी सिविल अच्छी है तो भी आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिल जाता है होम लोन पे। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, यू रियली नीड टू रीच आउट द डिजिट टू योर बायर विद द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। वो कैसे होगा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक नोट्स बनाने हैं और उसके बाद में एक वीडियो बनानी है इसकी, ठीक है? कि बजट से रिलेटेड कि क्यों आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? सो अगर आप 12-12 लाख रुपए की इनकम है, तब आप 24 लाख रुपए कमा रहे हो, तो 24 लाख रुपए में आप कितने रुपए की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो? सो अगर आप ये सिंपल बिना अपना शक्ल दिखाए भी, अगर आप ये जो कहते हैं ना चेहरा दिखाए भी, आप अगर ये वीडियोस बनाते हो, तो आई थिंक यू विल स्टार्ट सीइंग सम एक्शन अराउंड इट। एंड सोशल मीडिया इज़ वेरी पावरफुल गाइस। एक वीडियो मैंने कल आपको शेयर किया ही था, वो वेरी सिंपली उसने पेन एंड पेपर के अंदर पुरानी में क्या होता है, टैक्स रिजीम में नए में क्या है, एंड ही जस्ट मेड नोट्स। 5 मिनट मिले होंगे या फिर 15 मिनट लगे होंगे, एंड वो वीडियो खाली उसने 45 सेकंड के अंदर शूट करी और उसके बाद डाल दिया। एंड दैट वीडियो हैज़ आई थिंक मोर देन 1 million व्यूज, 50,000 plus shares. So this is the power. And that video was posted about 5 hours before when I share it. तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर वो कर सकते हैं तो आई थिंक यू गाइस कैन ऑल्सो डू इट, राइट? एंड पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू, पीपल स्टार्ट टेकिंग यू, ओके यू आर द प्रोफेशनल। एंड थर्ड इज EMI कैलकुलेटर। जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है, तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि सर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, अगर आप 25 लाख का लोन लेते हो तो आपको खाली 17,000 रुपए ही टैक्स पे, सॉरी EMI पे करनी है, और आप 17,000 तो निकाल ही सकते हो घर खरीदने के लिए, उससे ज़्यादा तो आप रेंट दे रहे हो। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट? Then you need to understand the comparisons, right? For example, why you should buy this particular project with comparison to other 5 projects. जब तक आप क्लाइंट के साथ ये एक्सरसाइज नहीं करोगे, क्लाइंट तो पहले ही कंफ्यूज है, आप उसे और कंफ्यूज कर देते हो 6 प्रोजेक्ट दिखा के। क्लाइंट को बस ये पता है कि मेरा बजट 50 लाख का है, मुझे घर देखने हैं। आप उसको अंडर कंस्ट्रक्शन भी दिखा रहे हो, आप उसको ग्रेड ए डेवलपर भी दिखा रहे हो, उसको ग्रेड बी, ग्रेड सी प्लॉट भी दिखा दे रहे हो, तो आपने उसको और कंफ्यूज कर दिया। तो योर work is as an advisor is to solve the problem, not create the problem. Then third is digital engagement guys. Please start using these tools like जो अभी मैं कर रहा हूँ। आप वर्चुअल वेबिनार कर सकते हो, आप वर्चुअल प्रॉपर्टी शोकेस कर सकते हो, किसी भी प्रॉपर्टी पे जाके एक वीडियो बना के देन यू कैन शेयर, कि क्लाइंट को दे सकते हो कि सर मैंने आपके एक लिए ना एक 5 मिनट का टूर बनाया है, सो दैट क्योंकि आप तो आ नहीं पा रहे हो, तो जस्ट टू सी कि मैं आपको शायद एक ग्लिम्स दे दूं, सो दैट इट विल हेल्प इन योर डिसीजन मेकिंग, right? And please give me a time, either I can come and meet you if you want to close it without seeing it, or you are most welcome. So this is a kind of hook you are putting together. Second, you can use WhatsApp and SMS marketing tool automation. 5,000 रुपए 10,000 रुपए महीने के खर्च होते हैं, so that you can actually make it more easy. We already organized a lot of trainings about automation in follow-ups. We are also organizing a CRM session, guys. Why you should use CRM? What are the benefits of using CRM? So please attend that training also. So next 5 days, I'm sure majority of the questions will get answered. I'm just giving you a broad overview. And guys, fourth, जो हमने लग्जरी वाले सेशन में भी बोला था, एक आप अपना ना एक क्या कहते हैं नीश पकड़ लो। नीश इन द सेंस कि आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि एक ही माइक्रो मार्केट में मुझे काम करना है। 99% ऑफ द realtors, they are not able to grow, they are not able to succeed in the life because they are everywhere,
राइट? तो छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ बैंगलोर का, ठीक है? आई हैव सीन एंड आई एम नॉट गोना नेम एनीवन, बट बैंगलोर में क्या होता है, हमारे बहुत अच्छे एजेंट्स हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, पर वो क्या करते हैं, आज एक प्रोजेक्ट आया साउथ बैंगलोर में, भाग के चले गए वहाँ पे, ठीक है? कल किसी क्लाइंट का फोन आया कि मेरे को तो वाइट फील्ड में एक प्रॉपर्टी चाहिए, तो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट 3 days दे आर रनिंग अराउंड इन वाइट फील्ड। फिर किसी ब्रोकर का फोन आया कि सर मेरे को ना अभी एयरपोर्ट के पास कुछ दिला दो इन्वेस्टमेंट के लिए। देन ही रनिंग अराउंड, देन ही कॉल्ड ऑल द ब्रोकर्स इन नॉर्थ बैंगलोर कि मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है, ये करो। तो उससे हो क्या रहा है, एंड चौथे दिन किसी का फोन आया कि मेरे को यार एक कमर्शियल चाहिए लीज पे, आप मुझे कुछ दिला दो चर्च स्ट्रीट पे, या फिर आप इंदिरा नगर में दिला दो 80 फीट रोड पे। देन ही स्टार्टेड सीइंग एज एन अपॉर्चुनिटी कि 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख कमरे हैं, तो मैं जाके करने लग जाता हूँ। सो इससे हो क्या रहा है, आप फोकस नहीं हो गए, एंड इससे एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट आता है, क्योंकि एक विजिट आपकी नॉर्थ में हुई है, एक ईस्ट में हुई है, एक वेस्ट में हुई है, और एक सेंटर में हुई है, तो उससे रिजल्ट आपके जीरो हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे सक्सेसफुल रियल्टर्स, वो लोग क्या करते हैं, वो एक मार्केट पकड़ते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, या फिर वो एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं, या फिर वो एक्सक्लूसिव लिस्टिंग्स लेते हैं और फोकस करके उस पर मार्केट करते हैं, राइट? इट इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ अ शॉपकीपर, राइट? तो अगर किसी को सामान लेना है तो वो क्या करता है, शॉपकीपर के पास जाता है उसी शॉप के अंदर, है ना? तो ये एक हमारा ट्रेडिशनल वे है। दूसरा क्या होता है, ई कॉमर्स होता है, जब हम ऑनलाइन जाते हैं, बट ऑनलाइन जाके भी हम सर्च करते हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। सिमिलरली अगर हमें किसी कम्युनिटी में घर खरीदना है तो हम उस कम्युनिटी को सर्च करेंगे या उस एरिया को सर्च करेंगे। सो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यू नीड टू बिकम एन एक्सपर्ट, यू नीड टू फाइंड योर नीश, चाहे आप प्लॉट कर रहे हो, चाहे आप घर कर रहे हो, चाहे अपार्टमेंट कर रहे हो, चाहे रेंटल कर रहे हो, एक माइक्रो मार्केट पकड़ के यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम देयर, एंड देन यू कैन ब्रॉडन योर होराइजन। और उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, किसी भी एक कम्युनिटी को पकड़ो, उस कम्युनिटी में जाके स्टार्ट कर दो विजिट करना। लाइक प्रोजेक्ट को पकड़ो, उसके प्रोजेक्ट के आरएम को मिलना शुरू करो, हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार वहाँ पे जाओ, चाहे आपके साथ क्लाइंट है या नहीं है तब भी आप जाओ। सो दिस इज लाइक यू आर फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सेकंड, अगर आप रीसेल में काम कर रहे हो, एक कम्युनिटी पकड़ो, कहीं ना कहीं 300 से 500 घर होते हैं कम्युनिटी में, वहीं पे रेंटल करो, वहीं पे रीसेल करो। एक से ज़्यादा जब आपको लगता है कि एक में एक्शन नहीं हो रहा, 2 कम्युनिटी पकड़ लो, बट एक नेबरहुड होना चाहिए, राइट? थर्ड, फॉर फ्रेशर्स, जो भी लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन है, कोई भी एक एरिया पकड़ो जहाँ पे आप रहते हो, उसके 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, या फिर जो भी आपकी सिटी का सबसे बेस्ट एरिया या अपकमिंग एरिया है, जहाँ पे आपको लगता है 50 लाख से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वहाँ आपको उसको, उस माइक्रो मार्केट को आप सेलेक्ट करो एंड देन स्टार्ट वर्किंग। कोशिश करो कि सबसे पहले आप फर्स्ट टाइम होम बायर, जैसे फॉर एग्जांपल कीप योर सेल्फ इन फर्स्ट टाइम होम बायर शूज। अगर आपको कोई घर खरीदना है तो आप क्या क्या चीजें समझना चाहोगे, गो दिस मार्केट, अंडरस्टैंड द मार्केट, सी ऑल द ऑप्शंस एज अ यू आर गोइंग टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। क्योंकि वो प्रोसेस जब आप देखोगे, सीखोगे कि भाई मैं ऐसा खरीदना चाहता हूँ तो मेरे को कितने का लोन चाहिएगा, कितने का लोन मिलेगा, कितनी मेरी इनकम होनी चाहिए, इस प्रॉपर्टी के अंदर मेरे को क्या क्या मिलेगा, अगर मेरे बच्चे हैं तो उनके लिए क्या क्या है, अगर मेरे पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या है, तो आप खुद को, अपने आप को एज अ बायर ट्रीट करो, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी और पर्टिकुलर नेबरहुड। और उसके बाद में देन यू कैन स्टार्ट एडुकेटिंग फर्स्ट टाइम होम बायर को भी, इन्वेस्टर को भी। इन्वेस्टर को आपको पिच थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, क्यों यहाँ पे प्राइस अप्रिशिएट होगा, राइट? फर्स्ट टाइम होम बायर को आपको बताना पड़ेगा क्यों ये नेबरहुड या क्यों ये कम्युनिटी सबसे बेस्ट है आपके लिए, राइट? सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू बिल्ड द कम्युनिटी अराउंड इट। सो गाइस, टीयर 3 का मैंने आपको बताया है, सबसे ज़्यादा रीज़न वहाँ पे लोग क्यों खरीद रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी की वजह से, लैंड्स हैं, ग्रोथ है, क्योंकि टीयर 1 टीयर 2 में ऑलरेडी लैंड्स महंगी हो गई हैं। जो प्राइस होते हैं टीयर 2 के कंपैरिजन में, यहाँ पे टीयर 3 सिटीज़ में ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा होते हैं। काफ़ी सारे लोग थे जो हमारे साथ जुड़े बेलगांव से, आई वुड से इंदौर से, इंदौर के भी आउटस्कर्ट्स से, काफ़ी सारी तो सिटीज़ के मेरे को नाम ध्यान नहीं है, बिहार में दरभंगा से। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि भाई क्यों आपको, और क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको उनके आसपास के हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करनी पड़ेगी, राइट? क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स हैं। अगर आप एक ट्रैवल टाइम का कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई अगर आप जाम में फंस रहे हो बैंगलोर में, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस है हेब्बाल सर्कल पे, ठीक है? अब हेब्बाल सर्कल एक, मतलब इट इज़ द मोस्ट कॉमन एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। बहुत सारी लोकेलिटी अलग भी हैं, बट अगर अब आपको हेब्बाल सर्कल जाना है कोरमंगला से, तो शायद आपको 1.5 घंटा लग जाए। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपको हेब्बाल सर्कल पहुँचना है, लेट्स से व्हाट डू यू कॉल, मतलब नॉर्थ बैंगलोर, जो अभी रेजिडेंट्स आए हैं वहाँ से, तो आई थिंक इट विल टेक 30 मिनट्स। अगर आप किलोमीटर्स में देखोगे तो आई थिंक दिस इज मोर देन दैट,
इन कंपैरिजन टू कोरमंगला। तो वो अगर कंपैरिजन आप बना पाओगे, सो तो आप इजीली सेल कर पाते हो, स्पेशली टीयर 3 सिटीज या फिर लैंड या फिर आप प्लॉटेड डेवलपमेंट। देन यू नीड टू ऑल्सो सी ऑर्गेनाइज सम प्रॉपर्टी एग्जीबिशंस इन दीज सिटीज। तो वहाँ से क्या होता है, टीयर 3 का तो बेस्ट बिजनेस मिलता ही मिलता है, टीयर 2 और टीयर 1 के लिए बिजनेस बहुत मिल जाता है। तो अगर आप लोग नहीं कर रहे हो, वहाँ पे कॉस्ट बहुत सस्ती आती है इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। 10,000 रुपये लोकल बंदे से जो वहाँ का बैंक वाला है उसके साथ में मिलके, तहसीलदार के साथ मिलके, या फिर आप वहाँ के जो ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं उनके साथ मिलके। सो उन लोगों के साथ मिलके आप एक एजुकेशन कर सकते हो कि भाई आपके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपकी ज़मीन इतने प्राइस पे बढ़ रही है। अगर आप बैंगलोर में भी इन्वेस्ट करोगे या पुणे में भी इन्वेस्ट करोगे या गुड़गांव में भी इन्वेस्ट करोगे, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि 90% ऑफ द डेवलपर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल गुड़गांव की जो सबसे ज़्यादा सेल्स आती है वो पंजाब से आती है, या फिर राजस्थान से आती है, या फिर आपकी दिल्ली से आती है। तो आप सोचो गुड़गांव में कौन खरीद रहा है, बाहर वाला खरीद रहा है ना, गुड़गांव वाला नहीं खरीद रहा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी खरीद चुका है। सेम बैंगलोर में कौन खरीद रहा है, जो लोग वहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं। सो इसके लिए ये ना कैंपेन्स बहुत जरूरी होते हैं, और जब आप वहाँ पे जाते हो तो ऑब्वियसली वो क्लाइंट बोलते हैं कि यार हमें कुछ यहाँ के मार्केट में भी खरीदवा दो। सो एक थोड़े सा आपको एक मैं जो कहते हैं ना एक आइडिया दे रहा हूँ, दैट यू कैन एक्चुअली इंक्रीज योर प्रेजेंस। अपना डिजिटल कैंपेन भी आप इन रीजन्स को फोकस कर सकते हो, राइट। और वहाँ से क्या होता है, बिजनेस आपके पास आता है, क्योंकि वहीं से लोग हैं जो माइग्रेट करना चाह रहे हैं एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छे शहर के लिए, अपने एक अच्छे फ्यूचर के लिए। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न इंडिया में जो आप देखोगे फॉरेन नेशनल कैन नॉट बाय। तो 99% ऑफ द डिमांड इज कमिंग, और आई वुड से 97% ऑफ द डिमांड इज कमिंग फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। तो डोमेस्टिक ड्रिवन मार्केट है हमारा, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, लोग घर खरीदते रहेंगे, शहर बसते रहेंगे, घर बनते रहेंगे। एंड आप देखोगे ये कभी नहीं रुकने वाला। रोटी कपड़ा और मकान, दिस इज द बेसिक नेसेसिटी। तो आप जैसे ही कहीं मूव करते हो सबसे पहले घर खरीदते हो। मैं छोटा सा एग्जांपल अपना ही बता रहा हूँ। मैं एक होम टाउन से आता हूँ, गाजियाबाद के एक छोटे से शहर मोदी नगर से। जब मैं नोएडा पहली बार शिफ्ट हुआ तो मैंने एक घर खरीदा, क्योंकि मैं मूव करा। देन उसके बाद में मेरी ज़रूरतें बढ़ी तो मैंने दूसरा घर खरीदा, राइट। तीसरा मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा, क्योंकि मेरे पास पैसा आ गया, कहीं तो इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ही मेरे जैसे देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर डूइंग दिस। एंड यू जस्ट नीड टू बीइंग अ रियल्टर, जस्ट नीड टू टॉक टू देम, रीच आउट टू देम, तभी आपका बिजनेस बढ़ पाएगा। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक फंडामेंटल्स, राइट। नाउ जो क्वेश्चंस आते हैं भाई, लग्जरी बायर्स कैसे काम करते हैं। सो लग्जरी बायर की एक प्रोफाइल है, दीज आर द बायर हु आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हमारे कंट्री के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, लग्जरी बायर कौन हो सकता है, जिसकी हाउस होल्ड इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। ये मैं बोलूँगा लो लग्जरी और मिड लग्जरी, जो कि 2 करोड़ 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं। जिसकी इनकम 1 करोड़ से 3 करोड़ तक है, वो आगे प्रॉपर लग्जरी वाले, जो कि आपकी प्रॉपर्टी खरीदते हैं साल की, लेट्स से जिसकी वैल्यू होती है आपकी 3 करोड़ 5 करोड़। एक मैं एवरेज आपको बताता हूँ, बैंगलोर में, बॉम्बे में जो प्राइजेज़ हैं, या गुड़गांव में या फिर नोएडा में, ये जो प्राइजेज़ हैं 3 करोड़ 5 करोड़ क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो आपके जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो आपके अपर मैनेजर पीपल है, तो उनकी जो सैलरीज़ हैं, हस्बैंड वाइफ की एज़ अ कंबाइंड सैलरी इज़ एक्चुअली 1 करोड़ एंड अबव। 50 लाख रुपीज़ के आसपास वो आ जाते हैं, या 40 लाख रुपीज़ की सैलरी ले रहे हैं, राइट। या फिर उन्होंने कोई पुराना इन्वेस्टमेंट करा था, वो बढ़ के आज 1 करोड़ रुपए खरीदा था, आज वो बढ़ के 4 करोड़ रुपए का हो गया। सो दीज आर सम ऑफ द बायर्स हु आर एक्चुअली हैविंग अ नेट वर्थ एनीवेयर फ्रॉम 1 करोड़ टू 5 करोड़ रुपीज़, राइट। सो दीज आर द पीपल हु कीप ऑन बाइंग, राइट। सो दीज बायर टिपिकली प्रायर जो उनकी जो प्रायोरिटीज होती है, जैसे मैंने आपको बताया प्राइवेसी, फॉर एग्जांपल ज्वेलर्स का मैंने एग्जांपल दिया था। सो वो ग्राउंड फ्लोर पे ही शॉप क्यों खोलते हैं, मतलब दिस इज अ क्वेश्चन। मैं एक बार सुनना चाहूंगा आप लोगों से, कभी सो ना गए हो सब लोग सुबह सुबह। फटाफट गाइस आप बताओ कि ज्वेलर मतलब क्यों ही खोलता है ग्राउंड फ्लोर पे। आपने देखा है कभी किसी ज्वेलर की दुकान थर्ड फ्लोर पे या फिफ्थ फ्लोर पे हो? अप्रोचेबल होती है Visibility and जब easy लोग। access. इजी एक्सेस, क्योंकि जब आप जाओगे ज्वेलर की दुकान में आपके पास पैसा होगा, राइट। एंड दूसरा, जब आप निकलोगे आपके पास एक वैल्यूएबल आइटम होगा, राइट। सो ये जो लग्जरी वाले लोग होते हैं, इनको चाहिए प्राइवेसी। इनको कोई देखे भी ना ये कहाँ रहते हैं, ये क्या करते हैं, इनके बारे में पता ना चले, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ फियर ऑफ लूजिंग, राइट। दूसरा इज सिक्योरिटी। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन वाई एवरी डेवलपर, अगर आप जाओगे जी यहाँ पे प्राइवेसी बहुत है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है। आपकी एक विंडो से आपको कभी कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई व्यू नहीं दिखना, आपके घर में कोई झांक नहीं सकता,
right? Second is security, 24/7 security, 7 layers of security, 3 tier security, 24/7 camera access, right? And they also focus about the main location, है ना? सो दूसरा उनका क्या होता है कि उनको ईजी चाहिए, उनका अगर ऑफिस 2 किलोमीटर दूर है तो दे प्रीफर लिविंग इन दैट टू क्लियर एरिया, उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास पैसा है। अब उनको लाइफ में कन्वीनियंस चाहिए, उनको लाइफ में एक ईजीनेस चाहिए, है ना? तो मोस्टली अगर आप देखोगे जो एयरपोर्ट से और सिटी से जो पास की लोकेशन होती है, मतलब काइंड ऑफ मिड लोकेशन होती है, वो सिटी से भी पास होगी और एयरपोर्ट से उसकी प्रॉक्सिमिटी भी अच्छी होगी या कनेक्टिविटी अच्छी होगी, वो एरिया सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, राइट? सो फॉर अ इन्वेस्टर ऑल्सो आपको वो एरियाज आइडेंटिफाई करने होते हैं, बीइंग अ ब्रोकर, दैट सर दिस इज द बेस्ट लोकेशन इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ योर वर्क ऑफिसेज, इन टर्म्स ऑफ योर businesses, right? So these people, they want convenience in their life. If they wanted to reach at the airport, they can maximum spend 45 minutes. अगर वो 1.5 घंटा लग रहा है तो वो कोशिश करेंगे वहां से मूव करने की, ठीक है? अगर उनको ऑफिस जाने में, क्योंकि उनके लिए पैसे की वैल्यू नहीं, उनके लिए टाइम की बहुत वैल्यू है। एवरी मिनट इज एक्सपेंसिव फॉर देम, बिकॉज उनकी जो पर डे की सैलरी होती है, अगर आप उसको बैक ट्रैक करोगे, सो दिस इज इन द रेंज ऑफ 10,000 to 20,000 रुपीज, राइट? और 10,000 to 1 लाख रुपी पर डे की बता रहा हूँ मैं उनको, वैल्यू ऑफ टाइम। तो आपको वो समझना पड़ेगा और वो क्रैक करना पड़ेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज बायर प्रोफाइल। देन हाउ टू रीच देम, सबसे पहली बात है आपको भाई फीचर्स की बात करनी है, आपको ग्रैंडनेस की बात करनी है, आपको प्राइवेसी की बात करनी है, आपको मार्केटिंग भी उसी अप्रोच में करनी है, राइट? सो योर टारगेट मार्केटिंग शुड बी द पीपल हु आर बाइंग एक्सपेंसिव कार्स, the people who are clubbing in the most expensive restaurants, the people who are going and hosting events and dinners in the 5-star hotels. And that is one of the reason why it's always advised, if you want to sell the luxury properties, you need to surround yourself with the like-minded people. You need to go to the most expensive, I would say, uh, gym in your particular city, because if a person is paying 2 lakh rupees for nothing, that means he has extra money, right? Similarly, you need to play some activities or go to golf, go to these what do you call, horse racing events, right, in the major markets, because these are the profiles where you will find such people. You need to join the private clubs, you really need to be a part of or access to those communities, right? Networking events, high-end networking events, best school alumni, best college alumni. There are some forums where top executives are part of, so you need to be a part of those things if you need to crack this. अगर आप सोचो कि भाई मैं सोशल मीडिया पे 1 लाख रुपए खर्च करके और 50 लीड जनरेट करूंगा 5 करोड़ वाले क्लाइंट की, तो इट्स अ बुलशिट. पीपल आर लिटरली फूलिंग यू. आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस. यू आर नॉट एबल टू, एक आधा कोई डील हो जाए, इट्स एन एक्सेप्शन, लक लग गया, बट नहीं होगा. इट्स अ कंसिस्टेंट प्रोसेस. यू नीड टू थिंक लाइक द मिलियनर्स इफ यू वांट टू डील विद देम. तो ये क्वेश्चंस आई थिंक बार बार आते हैं, आई एम श्योर आपको अभी जो नेक्स्ट सेशंस होंगे लीड जनरेशन के लिए, लग्जरी प्रॉपर्टीज के लिए, दे विल शेयर देयर ओपिनियन. बट ट्रस्ट मी, if you are thinking you can sell a 5 crore, 10 crore, 15 crore property by doing a social media ad, putting a listing on 99 acres, it's a myth. It's a bullshit reason. You need to approach them. You need to build a relationship with them somehow. कुछ मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, ठीक है? तो आपको वो अपने आप से देखना पड़ेगा. यू नीड टू ड्रेस वेल, यू नीड टू बी गुड इन कम्युनिकेशंस, यू रियली नीड टू सेट सम अपॉइंटमेंट्स, बिकॉज उनके लिए टाइम की कीमत है. जो 10 करोड़ का घर खरीदता है उसके पास कभी टाइम नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करे. मैं जितने लोगों को जानता हूँ, एक आधा लोग होते हैं, मतलब हर तरीके के एक्सेप्शन होते हैं, बट या तो उनके ऑफिस से कोई होता है जो वो डील्स एक तरह से फिल्टर आउट करता है, या फिर वो उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली, या फिर उनके जो चार्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, या फिर जो उनके सीएज होते हैं, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो उनको एडवाइस करते हैं, ठीक है? सो दीज आर सम ऑफ द पर्सपेक्टिव, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. Second, they always think, because they are businessmen, that whatever they are buying, it's a good for investment also. So they are going to use it for their end use. बट कहीं ना कहीं जो भी बिजनेस माइंड होता है वो उनको आप निकाल नहीं सकते. तो वो प्रॉपर्टी में हो सकता है 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे दें, ठीक है, या 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे दें अगर लोकेशन अच्छी है, क्योंकि उनको पता है आज वो महंगा खरीद रहे हैं तो कल को महंगा ही बिकेगा. So they always think like that. They always go for perfection. They always go for the best of the best.
राइट। और दूसरा उनके लिए ना एक प्राइड एंड प्रेस्टीज होती है, एक एस्पिरेशन बाय होती है लग्जरी। सो ऑलरेडी जस्ट टू शेयर एन एग्जांपल, शशांक ने जो ट्रांजेक्शन करा, तो he himself told me that the reason why a person that buy, because he is already in camellias now. Have we lost you, Sushankji? Yeah, let me check, guys. Let me inform him. Please be there. Can you hear me, guys? Sorry, I think I was kicked out from the session. Yes, we can Yes, hear sir. you, Sushankji. Yeah, I don't know till when you heard me because I was just talking because my screen was shared. तो मुझे पता नहीं Till कि Camellia, you were saying that it was अच्छा। bought by someone who's inside Camellia. That's Yeah, when. so the person who bought it, he was already part of that community and he know what DLF delivers. And the reason why he bought the upcoming development, because he don't want to feel that he has no access for the biggest clubhouse in the country, and that's one of the reason. So let me just share my screen again. I don't know what happened. I hope you can see the screen again. Yes, yes, sir. Yes, yes, now can. So now, what these buyer wants, like for example, luxury, they want, as I said, sustainable areas. Sustainability features should be there. This is their most priority because they are the leaders, and they wanted to bring the change. They wanted to talk about. They wanted to show off about it, right? Second, they want ease in life. They really want the home automation. They want the privacy, security, everything. So आप अगर डेवलपर से जाके पूछोगे तो आपको उनसे पूछना चाहिए, जब भी कोई लग्जरी प्रोजेक्ट बेच रहा है तो क्या क्या एमिनिटीज है, क्लब कितना बड़ा है, राइट, लोकेशन कैसी है, क्या क्या अदर फीचर्स रहेंगे, वाई वन शुड बाय, जो इंटीरियर आप करा रहे हो उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, बिकॉज दे आर वेरी पर्टिकुलर, या फिर आप बेयर शेल दे रहे हो, ठीक है। वॉट आर द कम्युनिटीज एमिनिटीज, बिकॉज ये लोग हैं तो इनको बिजनेस सेंटर बहुत जरूरी, आप देखोगे लग्जरी का, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ उनको क्या क्या चाहिए लाइफ में। उनको चाहिए कि भाई उनका जो वहाँ पे जो कहते हैं ना, व्हाट डू यू कॉल, जो लॉबी है, इट शुड बी रियली लग्जरी, एक फील दे, डबल हाइटेड या ट्रिपल हाइटेड लॉबी होनी चाहिए। शोफर उनको बिल्कुल गेट पे छोड़े उनके टावर के, राइट। सो मोस्ट ऑफ द लग्जरी डेवलपमेंट आप देखोगे ये सारी फीचर्स उसमें होते हैं, ठीक है। देर हैज़ टू बी अ काइंड ऑफ टोडलर्स एरिया, किड्स प्लेयर एरिया, देर हैज़ टू बी अ बिजनेस सेंटर, देर हैज़ टू बी अ रेस्टोरेंट, right, which is again a good restaurant where it is kind of butler services should be there, बिकॉज उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो उसी तरीके की होती है जहाँ पे कि वो पर्सनल मीटिंग्स भी करेंगे, बट दे डोंट वांट इनवाइट एवरीवन टू देयर होम। They just step down and they can sit in the bar, they can sit in the restaurant, and they can do their meeting. So for example,
Gurgaon mein, I don't know how many of you guys have experienced it, but if you want to go for someone who lives in let's say Magnolias, Camellias, they simply invite you to the club. ठीक है, क्लब में क्या है, वहाँ पे बिजनेस सेंटर्स हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे बार्स हैं, वहाँ पे सिट आउट एरियाज हैं, तो दे विल डू देयर मीटिंग फ्रॉम देयर. ठीक है, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो आपने देखा होगा कि जो मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, वो अगर ट्रैवल भी करते हैं तो वो जाके लाउंज में बैठते हैं, वो जाके नॉर्मल एरियाज में नहीं बैठते हैं. वो बिजनेस लाउंज के लिए या तो पैसे देते हैं या फिर उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो प्रीमियम बिजनेस लाउंजेस होते हैं, हर एयरलाइंस के होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनका कस्टमर है वो वहाँ पे भी डिस्टर्ब ना हो, वहाँ पे भी उनको प्राइवेसी मिले, वहाँ पे उनको एक एम्बियंस मिले जहाँ से वो काम कर सके, क्योंकि एज आई सेड उनके टाइम की वैल्यू है. तो जब बात आती है लग्जरी की, इट इज ऑल अबाउट कन्वीनियंस, इट इज ऑल अबाउट रेयर, इट इज ऑल अबाउट एलिगेंस, इट इज ऑल अबाउट बिग साइज काइंड ऑफ लाइफस्टाइल. तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी इफ यू आर सेलिंग इन द लग्जरी मार्केट. So guys, this is again the last and the last lead. They really wanted to be on the major center. जो मैंने आपको पहले बताया था कि हॉस्पिटल्स पास में होने चाहिए, स्कूल्स पास में होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट हब्स पास में होने चाहिए. जो बंदा 5 करोड़ 10 करोड़ का काम कर रहा है, या तो वो टॉप एग्जीक्यूटिव होगा तो उसका ट्रैवल बहुत होगा, या फिर वो एक हो सकता है उसकी खुद की इंडस्ट्री हो, या फिर उसका खुद का ऑफिस हो, तो उसके ऑफिस से उसका घर पास होना चाहिए. और दूसरा, बिकॉज उनको एक प्राइड होता है, तो वो चाहते हैं एक बड़ा सा फैंसी घर बनाए. आप देखोगे मोस्ट ऑफ द पीपल, यू नो, दे बिग फैंसी हाउसेज एट द मोस्ट प्राइम लोकेशन, बिकॉज उनको भी पता है कि उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है, तो उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, राइट. इट डिपेंड्स, लाइक यू नो, चाहे वो आपका शादी करने में, जैसे आपने अंबानी को देखा होगा, व्हाट अंबानी हैज डन. अंबानी हैज जस्ट शो ऑफ द वर्ल्ड दैट यू नो आई एम सो पावरफुल बाय स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी. जिसको चाहा उसको मैंने बुलाया, उसको अपनी शादी में नचाया. तो दैट मीन्स यू नो ही रियली वांटेड टू शो द सुप्रीमेसी कि भाई मैं ही सबसे बड़ा हूँ. ठीक है, एंड ये ही सबसे बड़ा होता है जो बिजनेसमैन्स में, जो लग्जरी बायर्स में होता है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स एंड देन अकॉर्डिंगली पिच योर प्रोडक्ट कि कहाँ पे हो सकता है. तो अगर आप उनको एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पिच कर रहे हो, या फिर आप उनको एंड यूज प्रोडक्ट कर रहे हो. और एक होता है एस्पिरेशन. अब अंबानी ने एक शादी करी, उसको देख के आपको मैं बता रहा हूँ, इंडिया में आई थिंक 100 से ज़्यादा शादियाँ ऐसी हो चुकी हैं, प्राइवेट पार्टीज हो चुकी हैं जहाँ पे कि फैंसी लोगों को बुलाया गया. इट वाज अ फैंसी पार्टीज, बट यू नो दे सेट एन काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, और दूसरे लोग उसको अब रेप्लिकेट कर रहे हैं या उनके जैसा बनना चाह रहे हैं. नॉट एट इज स्केल, बट पीपल स्टार्टेड शोइंग ऑफ. तो एक शादी हुई जियो कन्वेंशन में, उसके बाद में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेडिंग विच हैपेंड एट जियो कन्वेंशन, राइट, वेयर पीपल वांट्स टू बी यू नो लुक लाइक अंबानी. सो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो भी, जैसे ही एक बंदा खरीदता है अच्छा लोग, तो आपको पता होना चाहिए. तो अब भी बायर जब भी कोई खरीदता है लग्जरी डेवलपमेंट में, या फिर आप किसी भी अच्छे नेबरहुड में काम कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए हु इज द नेबर्स, राइट. तो अगर आपके जैसे फॉर एग्जांपल प्रेस्टीज ने एक बहुत शोर मचाया कि मिस्टर नारायण मूर्ति हैज बॉट एन अपार्टमेंट इन वन ऑफ आवर डेवलपमेंट. यही तो किया उन्होंने. वो क्यों किया? ताकि दूसरे जो सीईओज हैं, दूसरे जो सीएक्सओज हैं, दूसरे जो बिजनेस ओनर्स हैं, उनको पता चले कि भाई मेरे को भी इसी बिल्डिंग में रहना है, क्या पता किसी दिन नारायण मूर्ति सर मेरे को मिल जाए, मेरी उनसे फ्रेंडशिप हो जाए. ठीक है ना. तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो लग्जरी में इन्फ्लुएंस करती हैं, एंड आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन दैट, एंड इट्स अ प्रोसेस गाइस. यू नीड टू कीप ऑन यू नो ग्रोइंग योरसेल्फ. ईएक्सपी लग्जरी का हमने वेबिनार किया था. देयर आर डिफरेंट अर्निंग्स, देयर आर डिफरेंट ट्रेनिंग्स फॉर दिस ओनली. बट किसी भी आप दिन सोचो कि मैं सीधे जाके 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दूंगा, नहीं होगा. लक लग जाए, किस्मत लग जाए, अलग बात है. आपको वहां तक पहुंचने के लिए पहले 1 करोड़ भी बेचना पड़ेगा, 2 भी बेचना पड़ेगा, 4 भी बेचना पड़ेगा, तब जाके 5 होगा. फिर जब 5 कर लोगे तो शायद आप 10 कर पाओगे. सो इट्स अ प्रोसेस, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ. यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. So guys, now quickly just wanted to give you some understanding. So I think you hope which are the markets in India, how the market is growing, which are the major sectors, which is residential, commercial, industrial, why these markets are growing, because of infrastructure, because of more purchasing power, parity of Indian consumer. Then you know you really need to identify which markets you wanted to work, whether it's tier 1, 2 or 3. Third, which kind of buyer, right, you wanted to work. So you need to understand their needs first, then only you will be able to work with them. Third, I give you a perspective of affordable housing selling, and I also give you a perspective of luxury housing selling, right, and what should be your go-to strategy when it comes to your this thing. So now my call to action is, sorry guys, कोई कुछ कह रहा है क्या? Anyone saying something?
ओके अच्छा, कितने में सोल्ड आउट हुआ? कुछ तो कोई बोल रहा है I think this is Mr. Praveen. Hey, Mr. Praveen, Praveen ji, put your mic please on. put yourself on mute. Oh, sorry. Yeah. So now, when it comes to call to action, guys, these training only makes sense if you take some steps, right? So if you like this training, guys, please put it in the comment. So I just wanted to give you a call to action. So first, you need to find the micro market you want to work with. That is one point. You can make a note of it. And going forward, every training, please sit with pen and paper with you so that you will take some notes out of it. Because होता है कि आप सुनते हो भूल जाते हो. कोशिश करो ये 1 घंटा जो भी ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हो यू शुड टेक इट एज अ लर्निंग ओनली बिकॉज दीज आर ऑल एक्सपर्ट्स एंड दे विल गिव यू सम नॉलेज फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव राइट. सो प्लीज मेक नोट ऑफ इट. सो सबसे पहले आपको एक अपना माइक्रो मार्केट फाइंड आउट करना है. आपको एक अपना टिकट साइज फाइंड आउट करना है वेदर आई वांटेड टू डू इन अफोर्डेबल, आई वांटेड टू डू इन मिड लग्जरी, आई वांटेड टू डू इन अपार्टमेंट्स, प्लॉटेड डेवलपमेंट, फार्म हाउसेस, फार्म लैंड्स, राइट. जो भी करना है आपको पहले एक स्ट्रेटेजी बनानी है. उसके लिए अपना एक माइक्रो मार्केट निकालना है. अपने क्लाइंट्स को समझना है कि मेरे बिहेवियर क्या होगा क्लाइंट्स का. अगर मैं लग्जरी बेचना चाह रहा हूँ तो मेरे को लग्जरी वाले क्लाइंट्स मिलेंगे कहाँ पे. अगर मैं अफोर्डेबल बेचना चाह रहा हूँ तो अफोर्डेबल का मेरे क्लाइंट्स कहाँ पे मिलेंगे, कौन होंगे वो क्लाइंट्स, क्या उनका एज ग्रुप होगा, कहाँ लोग वो रहते हैं, ठीक है, और उन लोगों को मैं कैसे टैप कर सकता हूँ. तो मैंने सबकी आपको स्ट्रेटेजी दी है, अफोर्डेबल के लिए भी, लग्जरी के लिए भी. तो आपको अब उसको इम्प्लीमेंट करना है. सो दीज आर योर 4-5 कॉल टू एक्शंस. So guys, I hope you find this session useful, and I really wanted to see in the chat what's your feedback on the same. If there's any question, please feel free to ask. Now the floor is open to take questions for 10 minutes. We started a little bit late today's session because of fixing things, but this session is going to be 1 hour session only. So anyone can ask the questions if you have. We still have 5 more minutes. So I'm happy to answer any question. Shashank ji, just a question on the way you said we need to socialize to operate in luxury market at places where luxury buyers come in. Now, for example, I'm going to a high-end restaurant to have dinner to surround myself, with people of similar, interest. But how do I like crack conversation with them? So they are eating, I'm eating, and it's very awkward. I go and say, okay, I do this, or what do you do? People might say you just focus on your dinner. No, Yeah, I'm just asking. no, absolutely. I think this is a very valid question also. So going for a fancy restaurant when this is like individual dinner sitting kind of a setup, so I think that's not the best place to go. Okay, if you ask me, like, I am young, you are also young, right? So we all are young. I would say if we are not 60, we are young. If we are above 60, then definitely we are kind of a little, I would say, younger. ठीक है. बट आपने करना क्या है ना, इट्स वेरी सिंपल. आपको ना अपने मतलब इट्स वेरी इजी फॉर यू एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद अ यंग गाय बिकॉज यू गाइज आर ऑल्सो इन द सेम काइंड ऑफ माइंड सेट. आपसे 3 से 5 साल छोटे और 3 से 5 साल बड़े लोग से आप इजीली कॉन्वर्सेशन क्रैक कर सकते हो. इट कुड बी अ जेनरिक टॉपिक. सो उसके लिए मैं आपको जो फाइन डाइन प्लेसेस है वो नहीं रिकमेंड करूँगा. आई वुड हाईली रिकमेंड यू कैन मे बी टेक अ मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, ठीक है, जहाँ पे कि आपका स्विमिंग हो या फिर कोई एक्टिविटी हो वेयर यू कैन प्ले स्क्वैश, राइट. स्पोर्ट्स इज ऑलवेज अ गुड कनेक्शन. इफ यू हैव सम इंटरेस्ट इन गोल्फ you can do that. If you have interest in lawn tennis, you can do that because then it's a kind of activity. You have to interact with them for play, right? Sometimes you will play with them, sometimes you play against with them. तो उसके बाद में आपके डिस्कशंस होते हैं. दूसरा, जैसे आपने बोला सर, गो फॉर क्लबिंग अगर पॉसिबल है. गो फॉर नेटवर्किंग डिनर्स ऑर्गेनाइजिंग बाय सम ऑफ द कम्युनिटीज. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ सम ऑफ द कम्युनिटीज लाइक BNI एक है. BNI क्या करता है? इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल गाइज. कुमार गौरव, आर यू देयर? आप में से कितने लोग BNI के मेंबर हैं? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज BNI में क्या होता है ना, छोटे से आई वुड से SMEs जो होते हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ओनर्स होते हैं, वो लोग वहाँ पे जाते हैं. कुछ लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं जो कि BNI के मेंबर हैं, बट वो शायद रेगुलर नहीं आते हैं. बट
majority of the people who are BNI member, they are paying almost 40 to 1 lakh rupees, 40,000 to 1 lakh rupees annually just to create the network. So that is one. I am a BNI, myself a BNI member, Tushar ji. तो BNI में आपको पता है क्या होता है, it is more about networking. बहुत ज्यादा. So BNI एक one chapter है. दूसरा there's one this company called what do you call Young India, right? So you can be a member of that. So mostly Rotary, absolutely Kumar, Rotary, absolutely. You can be a part of NGOs, guys. Again, I'm saying charity कौन करता है जिसके पास पैसा होता है. तो चैरिटी क्लब्स होते हैं, उनके साथ आप बन सकते हो, एनजीओस के साथ एसोसिएट हो सकते हो. वहाँ पे नॉट ओनली आप खाली अपने लिए नेटवर्क बना रहे हो, दूसरा आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हो, राइट? तो कुछ लोग बोलते हैं ना, दूसरे का भला करते हो मेरा भला हो गया. लॉयंस क्लब डेफिनेटली. सो देयर आर सो मेनी क्लब्स यू कैन बी अ पार्ट ऑफ. दूसरा you can go for these networking events, forums which happens. 5,000 रुपये 3,000 रुपये होता है उनकी फीस. उसके बीच में आपको नेटवर्किंग लंच मिलता है. सो इवेंट्स अटेंड करने से इट इज़ ऑल अबाउट योर नेटवर्क, एक्सपेंडिंग द नेटवर्क. आप जाके उनसे हाई लो कर सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो. अगर आपको लेट्स से एक हाउसिंग कॉन्फ्रेंस हुआ बॉम्बे में, ठीक है, वहाँ पे सारे टॉप के डेवलपर्स भी आए हैं, वहाँ के टॉप के ब्रोकर्स भी आए हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स भी आए हैं, बैंकर्स भी आए हैं. तो आई थिंक दीज आर द पीपल यू वांटेड टू बी इन द रूम विद. दे आर द परफेक्ट ऑडियंस. और अगर 5,000 रुपये खर्च करके एक डेलीगेट पास लेके यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट क्लब, आई थिंक दैट्स द बेस्ट, है ना? तो इस तरीके के इवेंट्स को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा. व्हाट इज़ द नेम? इवेंट ब्राइट. वहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स होस्ट होते हैं. सम आर फ्री इवेंट्स, सम आर टिकेटेड इवेंट्स. यू नीड टू बी कीप ऑन एंगेजिंग विद दैट. एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एंड मैं आपको एक चलो हैक दे रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ. तो मैंने क्या करा था, आई फाउंड द बेस्ट कॉफ़ी शॉप इन दिल्ली, ठीक है. सो जो कि एक खान मार्केट के अंदर थी, एंड आई स्टार्टेड गोइंग देयर, स्पेंडिंग टाइम एवरी वेन एवर आई गॉट सम टाइम. तो मैं मीटिंग्स के बीच में जाके वहाँ से काम करता था. मीटिंग्स के बीच में वहाँ जाता था, लोगों से देखता था लोग कर क्या रहे हैं. बिकॉज जो आदमी 500 रुपये की कॉफ़ी पीने आ रहा है, तो यू कैन इमेजिन हाउ मच मनी ही मस्ट बी हैविंग, राइट? एंड देयर यू कैन क्रैक द कॉन्वर्सेशंस. मैं ये नहीं कह रहा रोज होता था. समटाइम्स व्हेन आई सी ओके आज काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, तो मैं कॉफ़ी शॉप पे बोलता था जाके काउंटर पे, कैशियर काउंटर पे. मैंने ये सच में किया है, ठीक है. मेरे को 5,000 रुपये पड़े और मैंने वहाँ पे 10 लोग बैठे हुए, तो मैंने सबको बोला कि एक ना वहाँ पे ब्राउनी होती थी, कि सब टेबल पे एक ब्राउनी भिजवा दो, ठीक है. तो इट वॉज विद अ नोट. और उन्होंने बोला क्यों, तो उन्होंने बोला वो जो सर बैठे हुए हैं उनके लिए. तो मैं खड़ा हुआ. इट्स अ वेरी स्मॉल स्पेस, मुश्किल से 10 टेबल होंगे और 6 या 7 टेबल पे लोग बैठे हुए. तो मैंने उनको बोला कि मैं आई एम अ रियल्टर एंड आई हैव जस्ट क्लोज अ ट्रांजेक्शन इन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड आई एम हैप्पी, आई जस्ट वांटेड टू सेलिब्रेट विद यू. तो उससे क्या होता है, लोग आते हैं आपसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं. एंड आई हैड 3 गुड कॉन्वर्सेशन. एक ने बोला कि भाई मेरी प्रॉपर्टी भी है जो 10 करोड़ रुपए की है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, वहीं पे बैठे बैठे, ठीक है. 5,000 रुपये खर्च करके एक सही ग्रुप में. और मैं वहाँ पे, वो उन्होंने मेरे को क्यों करने दिया, क्योंकि मैं वहाँ पे रेगुलर मेंबर था उनका. और ये करने में मेरे को कम से कम 40-45 बार मुझे उस कैफ़े के अंदर जाना पड़ा, जहाँ पे मेरे को स्टाफ भी जानता था. मेरी एक सीट डेडिकेटेड थी जहाँ पे मैं सेंटर में बैठता था. एंड दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, ठीक है. So there are so many things you can do it also. You can create the working women जिनके बच्चे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है. अगर आपका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, तो यू कैन ऑर्गेनाइज सम पार्टीज जस्ट टू बिल्ड दैट कम्युनिटी. सेकंड, जिस सोसाइटी में आप रहते हो वहाँ पे आप एक कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो और आप वहाँ पे अपने आप को पूरे प्राउडली दे सकते हो, क्योंकि इवेंट आपका है, आप स्पॉन्सर कर रहे हो. तो यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ इट दैट यू आर अ रियल्टर. वहाँ से बहुत क्लाइंट्स आते हैं. नॉट ओनली दैट, आस के पास की जो बेस्ट कम्युनिटी हो, जो बेस्ट नेबरहुड हो, वहाँ पे जो भी उनके लोहरी सेलिब्रेशन होता है, आप बोलो कि कोई मैच हो रहा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एंड आई एम जस्ट शेयरिंग अ टिप विद यू, all of you, no matter which city you guys are living in, find out a best community, ठीक है. और वहाँ पे जो कम्युनिटी के जो एसोसिएशन होती है उनसे जाके बोलो कि सर इंडिया पाकिस्तान का मैच है 22 या 23 फरवरी को है, एंड आई वांटेड टू डू अ बिग स्क्रीनिंग. तो जो स्क्रीन लगाने का सेटअप है, प्रोजेक्टर लाने का सेटअप है, स्पीकर का सेटअप है, वो मैं स्पॉन्सर करूँगा, EXP रियलिटी, ठीक है. और मेरा लोगो यहाँ पे रहेगा और आप अपने सारे रेजिडेंट्स को फ्री में बुलाओ. साथ ही साथ नॉट ओनली दैट, अगर आपके पास बजट अलाउ करता है, आप बोलो मेरे स्नैक्स भी हैं,
ठीक है, आई विल गेट सम कोल्ड ड्रिंक्स एंड पेस्ट्रीज एंड समोसे फॉर द रेजिडेंट्स। सर अगर किसी को भी आप जाके वैल्यू दोगे ना, आपके 50,000 1 लाख रुपए लग जाएंगे, ठीक है, जी बट आई एम टेलिंग यू, आपको जो माइलेज मिलेगा ना, यू विल नेवर रिग्रेट, ठीक है। दीज काइंड ऑफ इवेंट्स यू कैन होस्ट। आई होप आई एम एबल टू गिव यू सम सजेशन ऑन दैट। yes sir, very good, thank you so much. एनी अदर क्वेश्चन एनीवन हैज? किसी का और कोई क्वेश्चन, डाउट? सर जितना आप क्वेश्चंस पूछोगे उतने आंसर मिलेंगे, आई एम टेलिंग यू। प्लीज मेक दिस सेशंस मोर इंटरेक्टिव। बिल्कुल भी शर्माने की बात नहीं है, आप लोग सबको बोलना आता है, आप सब लोगों को सुनना आता है। जितने क्वेश्चंस पूछोगे उतने ही आंसर मिलेंगे, तो इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू लर्न और यू वांट टू जस्ट बी साइलेंट। कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए अगर आप अपने कम्युनिटी में नहीं पूछ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कोई बाहर का ट्रेनर नहीं है, आप ही में से लोग हैं जो आ रहे हैं यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए। तो आस्क मोर क्वेश्चंस, जो भी आपके चैलेंजेस हैं, ड्रॉबैक्स हैं, प्लीज आस्क दोज, राइट इट डाउन, टेक सम नोट्स, डू सम एक्शन। एनीथिंग एल्स Sir, एनीवन हैज? sir, Yeah. yes sir, एक और मतलब try and ask and put my thoughts across. तो जैसे आपने बोला कि जो लोग लग्जरी कार्स खरीद रहे हैं या जो लोग हाई पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उनकी ऑलरेडी कोई इन्वेस्टमेंट होगी, बट आप देख रहे हो मार्केट में इतना कंपटीशन है सर, देयर आर ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ एजेंट्स विद इन अ माइक्रो मार्केट ऑपरेटिंग। लाइक गुड़गांव में सबको पता है गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, मतलब पूरी जनता वहीं काम कर रही है। So my point is these senior executives are reached by hundreds and millions of people every day. मतलब वो अब तो शायद वो मैसेज देखते भी ना हो, तो what is the percentage or chance that I would get a senior executive to do a transaction with me? बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो उनके साथ ऐसे क्लबिंग करते हैं या उनके साथ मिलते हैं या पहले उन्होंने ये कराया था। So what is my chance of getting into that or breaking the ice with them? सो सेकंड यार, मेरे को ऐसे केसेस में मतलब मैं आपको एक छोटा सा टिप देता हूँ जो मुझे लगता है कि कुड बी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। वहाँ पे यू जस्ट नीड टू टॉक अबाउट द वैल्यू, राइट? टॉक अबाउट योर ट्रांजेक्शन, नेवर ट्राई टू सेल देम एनीथिंग, ठीक है जी। तो आप ऐसे समझो कि मतलब यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एंड शोइंग देम एज एन एक्सपर्ट, यू आर नॉट आस्किंग देम टू डील विद यू, ठीक है। आप उनको बोलो कि कुछ अपॉर्चुनिटीज है जो मैंने ऐसे करा, दिस इज समथिंग आई हैव सीन द सक्सेस। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उनके सामने जाने की, राइट, सबसे पहली बात तो ये है, पहले उनके पास तक पहुंचना है। सो यू नीड टू शो देम सम वैल्यू दैट यू आर ब्रिंगिंग समथिंग डिफरेंट विच इज नॉट देयर इन द मार्केट। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यार, इट इज सेम लाइक कपड़ों के ब्रांड का, ठीक है। आपको पता है कि आपको एक कपड़ा का ब्रांड है, लेट्स से आप वैन यूसेन या एलपी से कपड़े खरीद रहे हो, ठीक है। अब आप नए शोरूम को क्यों ट्राई करोगे जब आपको ऑलरेडी पता है फिट अच्छा है, पैसा आपके बजट में आता है, तो व्हाई यू आर गोइंग टू गो टू एनी न्यू ब्रांड, यू राइट, है ना। तो वो क्या करते हैं, अपना शोकेस करते हैं प्रोडक्ट को, वो दिखाते हैं कि भाई क्वालिटी देखो, वो आपको एक एक्सपीरियंस अलग देते हैं, और अगर आपको समझ आता है तो आप परचेज कर लेते हो। यही तो होता है ना। सिमिलरली मैं आपको इन क्लाइंटों के लिए बता रहा हूँ, अगर आप इन क्लाइंटों से कभी भी आपको मिलने का मौका मिलता है या आप उनको रीच आउट कर रहे हो, या तो आप उनको एक अपॉर्चुनिटी ऐसी शेयर करो जो किसी के पास नहीं हो, राइट। देयर हैज टू बी समथिंग विच इज यूनिक विद यू, देन ओनली दे विल टेक अ चांस कि मैं आपके साथ आके काम करूँ। वो कब होता है, जब आप कोई एक्सक्लूसिव मैंडेट पे काम कर रहे हो या फिर आपके पास कोई एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो पता है आप ही के पास है और किसी के पास है ही नहीं। एंड दैट इज वाई एक्सक्लूसिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांटेड टू सक्सीड इन द बिजनेस, ठीक है, क्योंकि वो आप ही की शॉप पे मिल रही है और कहीं पे मिलेगी नहीं उन्हें, उनका ब्रोकर भी आप ही के पास आएगा। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग एक्सक्लूसिविटी। सेकंड, यू आर क्रिएटिंग सम मोर वैल्यू, द काइंड ऑफ सर्विसेज यू आर गिविंग इट इज बेटर देन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस। Majority of the time buyer buys or seller sells na, they have bad experiences with the broker, and next time when they wanted to do the same thing, they wanted to have a better situation. तो ये थोड़ा सा ना आपको समझना पड़ेगा, दिस इज अगेन आर्ट, द मोर यू इंटरेक्ट द मोर चांसेस यू आर गोइंग टू गेट इट। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, और जितने बड़े लोग होते हैं ना, दे डोंट शाई अवे, दे ऑलवेज हैव 3-4 ब्रोकर्स। जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें एक ही आदमी से खरीदें, ये भी एक सच्चाई है।
You're right, sir. Guys, only one person has a questions out of 40. शशांक जी, जी मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? प्लीज गो कल अहेड। मेरे पास एक कॉल आया कि मुझे बिरला नव्या में 4 BHK लेना है, बट जी मुझे उस एरिया का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए? सर, जो एजेंट बिरला नव्या पे काम कर चुका है EXP में पूछो अपने ट्रांजैक्शन स्पेशलिस्ट से कि सर बिरला नव्या में किसने डील करा है। नहीं, ये तो आप पूछ सकते हैं ना, लेकिन जब कॉल आता है ऐसे बंदे का कि जी मैं गोल्फ कोर्स पे रहता हूँ, मुझे आपका नंबर किसी ने रेफरेंस दिया है और मुझे 4 BHK बाई करना है बिरला में, आप जरा वहां पे मुझे कुछ ऑफर कर सकते हैं? तो आप उसको सीधे यही बोलना ना कि सर मैं वहाँ पे नहीं करता हूँ, मेरी एक इंटरनेशनल कंपनी है, बट जो बिरला नव्या देखते हैं, जो एक्सपर्ट है उस प्रोजेक्ट के, मुझे आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं आपको अभी कॉल बैक करा रहा हूँ। अच्छा, ये तो मैंने कहा, And लेकिन इससे ये आगे मैंने उनको ये भी ऑफर किया कि सर अगर आपको एंड यूज के लिए नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉन्सेंट हाइंस एलिवेट का अच्छा प्रोजेक्ट है, उसमें मेरे पास इन्वेंट्री है, वो मैं ऑफर कर सकता हूँ। सर मैं आपको अब इसका सीधा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे को खरीदनी है मर्सिडीज, ठीक है। हाँ, मैं मर्सिडीज के शोरूम में गया, मैंने बोला जी मेरे को मर्सिडीज खरीदनी है, मेरा बजट इतना है, आप मुझे एक सेडान दिखा दो, ठीक है, जो कि मेरे बजट में आ जाए, ठीक है। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, और मैंने उसको बोला कि सर एक काम करो, आप मर्सिडीज तो आप खरीद ही रहे हो, इससे बेटर है BMW सर आप खरीद। अगर ये क्वेश्चन मेरे पास, दिस इज अमरीक सिंह, मैं आंसर दिस क्वेश्चन। यस, नहीं मैं आपको खाली, मेरे अगर को यही पूरा करने दो क्लाइंट, अमरीक जी, हाँ फिर आप शुरू करना, एक बार मैं बस खाली बोल रहा हूँ। और मैं मर्सिडीज का सेल्स पर्सन हूँ, और मैं उसको बोलूँ कि सर आप BMW खरीद लो, वो अच्छा भागती है, एवरेज इससे बेटर दे देगी, सर्विस उसकी सस्ती पड़ती है, तो आपको लगता है कि इट्स अ राइट थिंग टू डू? पता नहीं, बट उस टाइम मेरे दिमाग में जो आया मैंने वही किया, मैं वही कह रहा हूँ, तो इसलिए वो मैं आता पूछ रहा हूँ। प्रैक्टिस से प्रवीण जी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ना जब भी कोई क्लाइंट ऐसा बोलता है तो आप उसको बोलो कि ठीक है सर, आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट समझाओ, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको एक्सपर्ट से बात करने की, एंड वी विल ट्राई टू मीट यू फर्स्ट, राइट, जस्ट टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। वी विल शो यू, गिव यू द बिरला नव्या फर्स्ट, सारी डिटेल्स, और मैं आपको साथ में उसी के सिमिलर जैसा प्रोडक्ट जो कि उसी के जैसा होगा या उसी के माइक्रो मार्केट में होगा, नेबरहुड में होगा, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। आई थिंक दिस शुड बी द बेस्ट अप्रोच इन माय ओपिनियन। अगर मैं ठीक आपकी है। जगह होता तो मैं ये करता। ओके, थैंक यू। Amrik, now you can share, from your experience. Go ahead. या अगर यही क्लाइंट मेरे पास आता तो मैं पहले आई विल मेक शॉर्ट नोट्स कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, बजट क्या है, उसकी टाइम अवेलेबिलिटी क्या है, वगैरह वगैरह। Give me 24 hours, I'll get back to you. Or within 24 hours, I will reach out to the transaction specialist team. Or, I have so many friends within EXP itself, जिनको मैं डायरेक्टली जानता हूँ कि कौन किस मार्केट पे काम कर रहा है। तो आई नो पीपल कि भाई जो बिरला नव्या के आसपास काम कर रहे हैं या उस इलाके में है, और मैं उनसे कहूँगा भैया ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, ये फ़ोन नंबर है, वगैरह वगैरह, है ना, प्लीज़ डू ए फॉलो अप और मुझे बता देना। और EXP के पास इंटरनल एक सपोर्ट सिस्टम है जिसमें 25% रेफरल इंसेंटिव मिलता है। तो अगर मैं वहाँ नहीं भी जाता और मैंने ये ट्रांजेक्शन किसी और रियल्टर के थ्रू क्लोज होती है, तो मुझे घर बैठे 25% उसका इंसेंटिव मिल जाता है, विच इज़ गुड इनफ। Great. That's So it. guys, let's just close the session for